What was your thought process while performing in GTO tasks? So, like, how did you deal with that pressure? 6 पीआर आए थे, 6 के 6 कॉन्फ्रेंस और What's the scenario in the command task? इसमें you went blank क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे blank हो जाते हैं वहाँ पे. अगर तुम अपने subordinates पे रिलाई कर रहे हो आइडियाज़ के लिए तो भाई तुम कमांडर किस बात के? एब्सोल्युटली एकदम सही बात है. And during that entire journey, you would have seen so many candidates getting commissioned, even married. What were the initial challenges that every cadet usually faces? भाई थक गया वो, अब पढ़ाई करना है, अब प्रिपरेशन करनी है. So once they are in academy, तो वहाँ से बहुत बच्चों का ये डाउट होता है क्या हमें SSB देने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. बीटेक के साथ साथ SSB की प्रेपरेशन को how did you manage that? So you missed your SSBs just because like वो your workplace. Final message from your end to all the aspirants who are preparing and going through this journey of SSBs, AFSBs, Coast Guard and any of the interviews. तो बिना प्रिपेयर के नहीं जा रहे हो तो मत जाओ, बेटर है. Okay, so welcome Shanket, man. It's really an honor to have you on the Voices of Experience. Just wanted to know how are you feeling today? Overwhelmed. It's great to be here. I was once a repeater, I was once a fresher, so it's an honor to even help them on come up to such a stage and get to know what things might be going appropriately and what are the sidelines of SSB. It's a great experience. Okay, man, great. And it's really a privilege for me to host you since you are having a great experience. So मैं अपनी अगर audience को बता दूँ, so you have been to SSB total of 17 times, which is really a very big challenge because बहुत बच्चों की motivation तो I guess 4 या 5 SSBs के बाद ही थोड़ी सी low हो जाती है. So before we directly proceed to your SSB experience and get some insights from you, just please just tell our audience a bit more about yourself, about your background, about your academics preferably. And what sparked your interest towards joining the Indian Armed Forces? So, Jai Hind everyone. I am Officer Cadet Shanket Sarangi, Bastar Company, Khitto Battalion, OTA Gaya. I'd say ex-OT. I am basically an electrical electronics engineer. I did my graduation from VIT Chennai, and post that I have done a job for 1 year as a financial market analyst in a company called Futures First in Gurgaon. And about my academic background, I have done my 10th to 12th from Visakhapatnam and thereafter in VIT Chennai. And I'm from a defense background, so that basically answers all the question of why I wanted to join armed forces. Initially, my thoughts were going on a different section. I wanted to become architect, but then I saw how my father worked, and then I've been in this very background for like 20 years when I realized my dream. So it automatically pushed me to this very way, and this motivation helped me out. This drove me throughout this throughout the journey, and this ensured that I don't give up the midway. So this was from my side. I've been a 17 SSBs till this date, and out of 17, I have gone to conferences 10 times. And so keeping that aside, I have got recommended thrice TC 141, Tech 65, and TC 142. Along with that, I have got screened out 4 times. That's also initial part. And I've cleared NDA a total of 5 times. I've CAT 4 times. Couldn't clear CDS, unfortunately. I've also cleared CGCAT once, as the CPO once. So these are all the list of government exams I've cleared till date. Okay, man. So such a vast experience you are having. तो सबसे पहले तो भाई मैं ये पूछना चाहूँगा कि that you have made it to SSB 3 times, right? तो भाई क्या मतलब एक रिकमेंडेशन कम पड़ रही थी या फिर लाइक क्या सीन था? बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चे ना वहाँ पे ये सोचते हैं कि यार भाई तू एक बार पहले भी रिकमेंड है, इस बार भी तो रिकमेंड हो जाएगा. तो ना वो दिमाग में वो बैरियर बना लेते हैं कि यार हमारे ग्रुप में तो PR भी है, प्रीवियसली रिकमेंडेड. तो अब इसके साथ कैसे टैकल करें? बट इन रियलिटी आई बिलीव इट्स टोटली योर कॉम्पिटिशन इज यू ओनली. बट भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक रिकमेंडेशन के बाद भी भाई क्यों मन नहीं भरा? एंड हाउ वाज द जर्नी सो फार? बिकॉज आई बिलीव दैट यू हैव ऑलरेडी बीन टू OTA, है ना? यू आर एन एक्स OTA कैडेट. सो जस्ट टेल आवर ऑडियंस मोर अबाउट दैट जर्नी. Sure. So it's great. 3 recommendation में तिक्का मार के निकलना था मेरे को. Basically, actual reason बताने से TC 141 में I was merit out, and it was pretty sure by the norms that I would be getting into OTA. But फिर भी just to get myself a cleared seat, I went for Tech 65, got recommended, got a good rank. Thereafter 142 का मैंने फॉर्म भरा हुआ था already. तो I was like कि यार 142 दे क्या, तो ऑल अकेडमी जा ही रहे, दे आते हैं. तो गया, एकदम नॉर्मल सेल्फ भर के गया था. PR था, OT ज्वाइन करने वाला था, नॉर्मल सेल्फ भर के गया था, वहां भी रिकमेंड हो गया क्योंकि अगेन इट्स जस्ट तो बताया था कि खुद से कंपटीशन है.
तो मैं वहां बेस्ट दिया, हो गया। और सब बोलते हैं कि यार आप ऑलरेडी रिकमेंड हो चुके हो, क्यों आ रहे हो देने के लिए। मैं अकेडमी में होके एसएसबी देने जाऊंगा अभी, क्योंकि ऐसा नहीं एसएसबी देना मेन है, ऐसा ये है कि मेरा एम है करेक्ट, ये बता था मुझे, ड्रीम है मेरा, आई में ड्रीम था मेरे को वहां जाना है। तो ओटी में होने के बाद ही मैं 2 बार गया एसएसबी देने के लिए। तो वैसा नहीं है कि भाई होना है, बट दैट ड्रीम नीड्स टू बी फुलफिल्ड। एंड ओवर दैट लोग बोलते हैं कि भाई आप इतने बार रिकमेंड हो गए हो, एक बैरियर बना लेते हैं पीआर्स के लिए कि यार उनका अलग परसेप्शन बन जाता है। बट वो सबके साथ नहीं होता, कुछ कुछ लोग बनते हैं बाद में, जो बंदे देखते हैं हम कितने स्वीट बंदे हैं, हम कितने चेयरफुल बंदे हैं। मैं कभी किसको दिखाया नहीं कि भाई मैं पीआर हूँ, लोग जानते हैं पीआर हूँ, बट मैं बाय माय एक्ट्स, बाय माय द वे आई टॉक, बाय द वे आई मेक देम फील, उनको कभी लगता नहीं कि भाई ये पीआर है, क्योंकि उनको लगता है कि पीआर लोग एटीट्यूड होता है उनमें। मेरे पे नहीं है, मैं चिल बंदा हूँ, मैं नौटंकी करता रहता हूँ एसपी के अंदर, उनको फील ही नहीं होता। आई नेवर गॉट दिस सेपरेशन बैरियर दैट पीपल फील सो फार। Okay, man, literally that's very humble quality of everyone. Because जब हम रिकमेंड हो जाते हैं, राइट, तो मुझे लगता है हम पे उल्टा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है टू प्रूव आवरसेल्व्स अगेन। तो हम ना थोड़ा सा टास्क को लेके थोड़ा सा सीरियस जब खुद को प्रोजेक्ट करते हैं, तो बाकी के ग्रुप को लगता है अरे भाई ये तो है ना कुछ ज़्यादा ही बन रहा है अपने आप में। बट दैट्स अ रियली बिग चैलेंज टू स्टे हम्बल एट द सेम मोमेंट वंस यू आर रिकमेंडेड एंड देन गोइंग अगेन फॉर एसएसबी। यहाँ पे संकेत, आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग, लाइक सिंस यू हैड जॉइंड ओटीए, राइट, and OTA में जाके भी since you were interested and fascinated more towards IMA, so you went to give the SSBs for the TGC entry. So यार उसका क्या प्रोसीजर होता है? बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चों का ये डाउट है कि वंस लेट्स से दे जॉइन द अकेडमी, फॉर एग्जाम्पल दे जॉइंड एयरफोर्स अकेडमी, एंड बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में होता है यार ये तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, बट साइड बाय साइड हमारा इंटरेस्ट तो IMA की तरफ भी है विच इज़ अ परमानेंट कमीशन। सो वंस दे आर इन अकेडमी, तो वहाँ से बहुत बच्चों का ये डाउट होता है कि एक बार अंदर चले गए तो क्या हमें SSB देने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, बिकॉज ट्रेनिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है एंड वीकली ट्रेनिंग कॉस्ट इज ऑल्सो टू मच if you at later stage, like after a month or 2 months, you decide to voluntarily get out of academy, so you have to pay a huge cost, right? So just please tell us that entire process in brief, which you would like to advise to all the students. सो वो आर कंफ्यूज कि भाई मैं अकेडमी में रह के भी कैसे दूं। देखो सबसे पहली बात है, अगर आप विड्रॉ करोगे सोचना ही नहीं विड्रॉ का। अगर आप मेंटली इतना टफ नहीं हो तो आप विड्रॉ करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं विड्रॉ किया हूँ, मैं अकेडमी बेस पे नहीं किया हूँ, अकेडमी ट्रांसफर होता है उसमें, लेकिन टाइम लगता है ज्वाइन करने में, तो मैंने विड्रॉ किया, आई हैव पेड hefty अमाउंट, बट दैट्स फाइन फॉर मी। बट अगर आप ऐसे विड्रॉ कर रहे हो मेंटली इसकी वजह से, तो मत करना, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज ये है कि हाउ टू डू दिस एसएसबी वाला पार्ट। तो इसमें 2 पार्ट है, योर कंपनी कमांडर हैज टू अग्री। जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ शॉर्ट सर्विस कमीशन गोइंग फॉर परमानेंट कमीशन पार्ट, तो हर बार एग्री करेंगे, कंपनी कमांडर एग्रीज एवरी टाइम, तो वो उसका दिक्कत नहीं होता है। यू हैव जस्ट आस्क योर कंपनी कमांडर, यू हैव टू टॉक टू योर प्लेटून कमांडर कि सर ऐसा ऐसा है, आई नीड टू गो फॉर एसएसबी। हर बार एग्री करेंगे। ऑल द प्रूफ दैट यू नीड टू प्रोवाइड इज योर कॉल अप लेटर, एंड आपका उसके बाद टिकट जो बनेगा आपको देना है proof। तो आपको अपना बटालियन जाना है, जैसे मेरे में तो ओटी बटालियन था, बटालियन ऑफिस जाना है और उनको देना है कि सर ये मेरी डिटेल्स है, आई नीड टू गेट मूवमेंट ऑर्डर। तो मूवमेंट ऑर्डर पे आपको पेपर मिलेगा, यू हैव टू गेट इट साइन फ्रॉम कंपनी कमांडर, प्लेटून कमांडर, एंड यू हैव टू एंश्योर कि किस डेट मेरे को निकलना है। फॉर एग्जांपल इट्स बीज ऑन 5th of January, सो विल बी लीविंग ऑन 4th। और आपको भले आप स्क्रीन आउट हो, आप चाहो, बहुत लोग ये करते हैं कि भाई स्क्रीन आउट आता है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मजे करते हैं वहां पे, सीधा वो डिटेल्स आती है कंपनी में, और फिर आप आओगे तो यू विल बी एंश्योर्ड, यू विल बी गेटिंग द राइटफुल दैट यू डिजर्व। तो उनका सीधा रूल ये है कि यू हैव टू ओनली लीव 1 day बिफोर एसएसबी एंड कम बैक इमीडिएटली द नेक्स्ट डे। You get conference dot medical जो भी खत्म होगा आपको, you have to come back. So academies in general are very supportive. If you go to give any SSB, they are very very supportive. But the condition is you need to maintain your discipline वहां पे भी। अगर आप वहां कुछ भी करोगे तो आपको कुछ बोला नहीं जाएगा, because you are part of Indian Armed Forces अभी, तो आपको कुछ बोला नहीं जाएगा, आपकी चीजें कंपनी में आ जाएगी, तो you will be ensured there. So बस वही एक रिक्वायरमेंट होती है, बाकी तो they are very 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 supportive. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैन फॉर क्लियरिंग द डाउट्स ऑफ सो मेनी कैंडिडेट्स हु आर अबाउट टू join their respective academies. Now, Shanket, I would be asking you a bit about your OTA journey, right? Since you had joined Officers Training Academy, so just tell our audience more about that particular experience. क्या routine थी? What were the initial challenges that every cadet usually faces? And then वो जो entire experience है, what kind of person you become after facing those entire hardships and the training. Just to give info, I was in Basatar company, which is the Khetpur battalion. Initially, there were 4 companies. Right now, they have mapped down into 8 companies because the intake has been rapidly increased. There are a total of 700 candidates वहाँ पे, तो उस हिसाब से हम लोग का टाइम टेबल बनता है।
सो आई वाज इन बसंतर कंपनी. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट चिल कंपनीज, जहाँ पे ज्यादा मारपीट नहीं होती, कुछ नहीं होती. सीनियर्स आर वेरी वेरी गुड. तो दैट हेल्प्स अ लॉट. एंड नाउ कमिंग टू द टाइम टेबल, वहाँ का टाइम टेबल फिक्स है. योर मॉर्निंग विल स्टार्ट एट 5 o'clock. जनरली समर मॉर्निंग में, अभी तो इट्स 6 o'clock. तो 5 o'clock शुरू होगा. यू विल बी कॉल फॉर ओडीटी, जिस आउटडोर टास्क. तो वहाँ होगा. जनरली इट इज इधर पीटी और ड्रिल, जीआरडी, दोनों में से कोई एक होता है. और इक्विटेशन विच इज हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, या फिर बस जनरली ये चीज होती है. तो आपको पूरा हफ्ते का शेड्यूल ऑलरेडी मिला होता है. तो आपको पता चलता है कि भाई कल सुबह मेरा क्या है. तो आपका जो सीएसएम होता है, कंपनी सर्विस मेजर, he ensures कि you come out on time. उसके बाद you will be released up at around 7-7:30. उसके बाद you go for breakfast. Thereafter you go for your academics. Academic block में आपकी academics होती है. वो सब्जेक्ट अलग होता है. तो आप वहां जाके जो बंदे जाएंगे भाई पता आई चलेगा एम उनको. रियली सॉरी It's टू totally इंटरप्ट. आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि पहले कितने हफ्ते आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया था? बिकॉज मैन व्हेन आई वेंट टू एएफए, तो भाई स्टार्टिंग में ना इतने ज़्यादा रूल समझा दिए थे कि भाई क्वार्टर प्लेट के ऊपर ही चपाती रखनी है, मेन प्लेट में ये क्लॉक रूल है, सब्जी यहाँ पे, सैलेड यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे, दाल मिक्सिंग एरिया ये. भाई तू मानेगा नहीं, मैंने 1 या 1.5 महीने तक खाना नहीं खाया वहाँ पे, सच्ची में. ठीक है. एंड मी एंड माई सो मेनी कोर्समेट्स, वी जस्ट डिपेंडेड ऑन द ड्राई फ्रूट्स, जो कि हम स्टार्टिंग में लेके गए थे थोड़ा बहुत छुपा के, ठीक है, कपड़ों के नीचे टाइप्स. बट हाँ, इतना थोड़ा सा अलाउड किया था उन्होंने चेकिंग टाइम पे. तो यू जस्ट टेल मी मैन कि तूने कितने टाइम के बाद प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया था? मैं सही बताऊं ना, तो मैं 3 हफ्ता तो कम से कम होगा मैं ब्रेकफास्ट कर ही नहीं पाया. और बहुत रीजन थे. फर्स्ट इनफैक्ट कि सुबह सुबह पीटी हो रहा है, सब थक थक के आए. और मेरा कंपनी वाज द फार्देस्ट ऑफ ऑल. ओके. मतलब अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर था. तो हिम्मत ही नहीं हुई कि भाई चल के या फिर साइकिल लेके भी जाए, हम लोग बाइक लेके जाए वहां तक. साइकिल को बाइक मुझको नहीं पता, साइकिल को बाइक बोलते हैं वहाँ पे. तो लेके जाए, किसी को हिम्मत नहीं हो रही. फर्स्ट चीज. सेकंड चीज, हम वहां पहुंच जा रहे हैं. तो जैसे ही पहुंच रहे हैं, बैठ रहे, सीनियर आके बोलते हैं ओके मैस आउट. अब ये नहीं, अब क्रॉस क्वेश्चन कर ही सकते हैं हम लोग. एग्जैक्टली. तो भागो भागो, प्लेट क्लोज कर रहे हैं सीधा और भाग रहे हैं हम लोग अपना. भले टाइम बहुत है, टाइम हम लोग का मेंशन किया कि 8:20 से पहले कोई उठेगा ही नहीं ब्रेकफास्ट के लिए. बिल्कुल. बोला एजुलेंट ने. बट फिर भी सीनियर्स बोले कि नहीं, यू हैव टू मिस आउट. तो वो रीजन था. देन इतने सारे रूल्स है. मैं मतलब बीइंग ऑल्दो डिफेंस बैकग्राउंड से हम लोग, बट फिर भी ये रूल्स वी आर नॉट परपेचुएटेड टू. तो ऐसे से रूल्स है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं खराब हो ही जा रहे हैं. और सुबह अगर आलू पराठा मिल रहा है, वैसे तो अलाउड नहीं है, बट एक आध हम लोग को अलाउ कर देता है. तो आलू पराठा खाने का भी टेक्निक, ऐसे काटो ये वो. एग्जैक्टली मैन. अब हम घर पे है, हमें पता है कि कैसे वो सब्जी चपाती एकदम से है ना, वी आर जस्ट इन टेकिंग दैट. बट अकेडमी में भी भाई लेफ्ट हैंड से चपाती तोड़ो, ठीक है. कोई सीनियर एकदम से आगे आके बैठ गया, अब लगता ही नहीं है पता, बिकॉज हर किसी का हेयर कट मोस्टली सेम है. लिटरली मुझे भी नहीं पता था. अच्छा, सामने आके अब सीनियर बैठ गया तो है ना, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट यू हैव टू जस्ट बैठे बैठे सावधान टाइप्स, या राइट और लेफ्ट में आ गया. स्टार्टिंग में इतने टाइम बाद खाना दिखता था तो बस खाने पे फोकस है, और आगे फिर सीनियर पकड़ लेता था. फिर देन ही यूज टू मेक श्योर कि हम 2 से 3 ग्लास अब पानी के पिए, फिर जो बचा कुचा खाना है वो खाएं. अब भाई कोई इंसान इनिशियली बेचारा है ना, वो कैसे खा सकता है? सो दैट वाज रियली अ मैन बिग चैलेंज. एंड आई होप आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा. बहुत बहुत. मैं तो नमक डाल के खिलाते हैं हम लोग को. हम लोग बोले कि पानी इज नॉट इनफ फॉर यू गाइस, पुट 3 स्पून ऑफ सॉल्ट, और फिर उसके बाद पानी पियो. भाई साहब बहुत हालत खराब. नहीं यार, वो बेसिकली मुझे लगता है यू नो दे आर ट्राइंग टू मेक यू मेंटली दैट शार्प एंड यू नो कि भाई हाँ, अब तुम कितना सहन कर सकते हो, राइट. तो उसके पीछे भी आई गेस देयर इज अ गुड इंटेंशन ऑफ सीनियर्स. बाकी यस मैन, आफ्टर द ब्रेकफास्ट इज डन, लाइक लेट्स कम बैक टू द शेड्यूल. उसके बाद क्या होता है? पोस्ट दैट वी आर सेंट टू एकेडमिक ब्लॉक्स. एकेडमिक ब्लॉक्स में जनरली अलग अलग कोर्सेज होती है हमारी. सबको पता ही है, ऑल्दो आई जस्ट मेंशन अ फ्यू. एकेडमिक्स में आपका टैक्टिक्स के बारे में पढ़ाते हैं, आपको आरटी. देन अबाउट हाउ यू नीड टू रीड मैप. सबको लगता है मैप्स भाई जो दिया है हम लोग को ऑलरेडी, जो बने मैप्स वो सब होते हैं. नहीं, डिफेंस के मैप्स बहुत ज्यादा अलग होते हैं. उसमें बहुत डिटेल होती है, बहुत चीजें ऐसी तो वो नहीं पता. तो वो मैप्स पढ़ना सिखाते हैं हम लोग को, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलरली आर्मी. वो हो गया. देन पूरे चलता है अराउंड 1:15 तक चलता है. पोस्ट दैट हमें भेजते हैं डिनर, लंच के लिए, सॉरी. तो लंच के लिए आप जाओगे अगेन, आपको 30 मिनट्स के आसपास मिलता है. देन यू कम बैक टू योर कंपनी क्वार्टर्स. यू टेक रेस्ट फॉर हार्डली 1 घंटा. और रेस्ट भी नहीं मिलती. अगर कुछ दिन में कांड किया आपने, कुछ अगर रूल्स फॉलो नहीं किया, तो भी सीनियर्स आके दे एंश्योर दैट यू टेक योर ड्यू रेस्ट. देन 3 o'clock से 4 o'clock बेसिकली गेम पीरियड होता है. और 4 to 5 फिर आपका होता है पीटी. तो दिन में लगभग 2 बार, 1 से 2 बार पीटी तो हो जाती है आपकी. तो ये शेड्यूल 5 बजे तक होता है. 5 बजे के बाद 5-5:30 तक यू कम बैक टू कैंडिडेट लाइन्स, यू फ्रेशन अप. देन 7:15 to 7:20 के बीच में होता है आपका फॉल इन, सेंट्रल फॉल इन. वो होता है हमारे पिपिंग एरिया में. तो ये ओटी गया के बारे में, पिपिंग एरिया में फॉल इन होता है. वह कुछ नहीं होता, बस वहाँ पे
काउंट करते हैं कि हर कंपनी के इतने बंदे होने चाहिए, कोई अगर अटेंसी में गया है तो कितने, बस काउंट करते हैं, 15-20 मिनट लगता है। कुछ अगर अगले दिन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज पास करनी होती है, कुछ एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ बात करना होता है, तो वो हमारा जो एसी होता है एकेडमिक एडजुटेंट वो बताता है। देन आफ्टर वी हैव डिस्पर्स्ड, वी आर सेंट टू मेस लाइन्स, हम्म। वहां पे अपन खाना खाते हैं, देन वी कम बैक। और फिर अगर कुछ काम होता है तो हम लोग जैसे कि नॉमिनल रोल बनाना है, कुछ भी आईटी काम होता है तो वी डू इट। हम्म। एंड स्ट्रिक्ट वैसे तो वहाँ पे लाइट्स आउट है एट 2200 आवर्स राइट नाउ, और उसके बाद भी अगर कुछ होना है तो होता है। ओके एंड संकेत मैन, व्हाट अबाउट द स्टडी पीरियड? उसके लिए कब टाइम मतलब मिलता है या कब स्टडी निकालते हो? पीरियड बिकॉज ये, बीच में एग्जाम्स वगैरह भी काफी होते हैं आई गेस। हाँ अभी स्टडी पीरियड जस्ट शुरू हुआ है क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। स्टडी पीरियड बेसिकली अपना 6 o'clock to 7 o'clock स्टडी पीरियड होता है। ऑलमोस्ट 5:45 पहले था बट अभी 15 मिनट कर दिया, तो 5:45 मान लीजिए, 7 o'clock तक स्टडी पीरियड होता है। ओके। एंड वी आर सेड कि हमें कम अब अपने रूम में ही रहना है, स्टडी पीरियड में बाहर भी निकलना अलाउड नहीं। हम्म। तो हर रूम में एक एक डेस्कटॉप लगे हुए हैं, तो हम हम्म। लोग अपना अपना जो डेस्कटॉप में ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग सिलेबस वगैरह वही पढ़ते हैं। बट भाई इस चीज में कितनी सच्चाई है कि दैट स्टडी पीरियड इज इक्विवेलेंट टू स्लीपिंग पीरियड? बिकॉज वही पूरे दिन में एक टाइम मिलता है जहाँ पे मुझे लगता है कोई कैडेट सुकून से सोता होगा, वो भी ऐसे ऐसे हाथ रख के नीचे किताब रख के और सो रहा है। एंड क्योंकि इतना ज़्यादा यार ओवरऑल रूटीन इज टू मच चैलेंजिंग कि नींद कोई रोक ही नहीं सकता, है ना? कुछ बच्चे तो फॉलेंस में पढ़ाई करते थे, राइट? लाइक फॉलेन में बैठे एंड दे आर रिवाइजिंग वो छोटी छोटी डायरीज के साथ, बिकॉज लिटरली दे आर गेटिंग वेरी लेस टाइम। क्लासेस में जाओगे, क्लासेस में भी थोड़ी बहुत नींद आ जाती है, बट हाँ ठीक है, जो नहीं सोता यार डेफिनेटली दे आर मेरे हिसाब से बहुत अलर्ट। एंड वो बेचारे जो आगे फ्रंट डेस्कर्स होते हैं उनके पास तो चॉइस ही नहीं होती है। तो इस चीज़ में भाई कितनी सच्चाई है एंड हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डन इट? ऐसे सोने का बात करें तो मेरा जेयू जो था, जूनियर ऑफिसर, बहुत स्ट्रिक्ट था। तो वो हर रूम में आके घुस चेक करता रहता था, तो अगर सो रहे हो आके बुलाएगा कि सारंगी, तो मैं उसे देखना पड़ता था कि ओके क्या पढ़ रहा है, बोला, सर ये पढ़ रहे हैं, ओके ठीक है। फिर जाएगा, कम से कम 2 बार तो आता ही था, तो चांसेस है कि सोए कोई बंदा। हाँ मतलब कभी कभार हमको मिल जाता टाइम कि अगर कुछ अच्छा कर दिया, मान लो पीरियड में अगर कंपनी ऐसे क्रॉस कंट्री में सेकंड आई, तो वी हैव प्रिविलेज कि तुम चुपचाप सो जाओ, कोई नहीं बोलेगा तुमको, जाओ सो जाओ वहां पे। तो कोई कुछ बोलता नहीं था। ओके। नेक्स्ट कम द पॉइंट कि क्लास में सोने का बाद मेरा एक दिन नहीं बीता होगा, एक सेक्शन क्लास का पीरियड नहीं बीता होगा जहां मैं सोया नहीं हूँ क्लास में। और ये रीजन ये, और मैं नहीं, कोई बंदा सोया नहीं कोई है, बंदा। एटलीस्ट एक बंदा तो हर क्लास सोता है। हाँ कंपनी हाँ। कमांडर खुद हमारे क्लास आया था, लीडरशिप एंड ह्यूमन एचआरएम का, तो उस क्लास में बंदे सो रहे हैं और पता है कि इस क्लास में सोना नहीं है। अगर सोओगे तो कंपनी कमांडर फिर तुम्हें देखेगा, तुम्हारी फिर लगेगी परेड। बट फिर भी लोग ऐसे डोज कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अब जो होता है एग्जैक्टली। सबको पता है वहां पे, हाँ हाँ। इसके बाद नींद बचती है, बस रहती ही नहीं है मतलब टाइम सोने का। तो क्लास में सभी सोते हैं, कोई भी क्लास हो, कोई ना कोई 10-15 लोग तो सोते ही सोते हैं 30 में से। एंड द बेस्ट थिंग मैन आई स्टिल फाइंड आउट इज कि मैक्सिमम लोग एग्जाम्स पास भी कर लेते हैं बाद में। मतलब तुम मेंटली भाई इतना स्ट्रांग बन जाते हो इस मोमेंट में, ठीक है, कि तुमने आंखें खुली रखी है, तुम सामने देख रहे हो, बट तुम फिर भी सो रहे हो। तो वो भी एक, मुझे लगता है हर हर इंसान उसको ना उस आर्ट को मास्टर कर लेता है उस टाइम पे, राइट? ओके, सो मैन एज वी जस्ट कंप्लीट दिस इंटायर शेड्यूल विच वाज देयर इन OTA, so now let's switch into our academics part. तो शकीत भाई, you have done your engineering, right? And जो आपकी तीनों recommendations हैं वो 2 तो TGC के लिए and 1 is for SSC Tech. So I just want to know यार कि BTech के साथ साथ like SSB की preparation को how did you manage that? Because again BTech is a very vast course and it requires a lot of time, right? So we just want to know your strategy कि कोई भी अगर स्टूडेंट जो कॉलेज में इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट लेता है तो वो SSB की तैयारी साइड में कैसे मैनेज कर सकता है। एंड उसके अलावा बहुत ज़्यादा बच्चों का ये डाउट होता है कि सर मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, एंड उसके पीछे उनका मे बी एक डीप डाउन फियर ये होता है कि इंजीनियरिंग करेंगे तो SSB की तैयारी नहीं कर पाएंगे, देन दे सेटल फॉर BSc और BA, ठीक है? क्योंकि देखो अब BTech is definitely giving you a skill set, whether you do it in computer science engineering, electronics and communication, mechanical or anything else. So what's your take on this and how did you manage your BTech alongside the SSB? ओके, फर्स्ट द इजीएस्ट वन फर्स्ट कि बीटेक या बीएससी वाला पार्ट, किसी को भी अगर डाउट है कि भाई बीटेक लूंगा तो मैनेज नहीं हो पाएगा, डीप डाउन एक खुद खुद बात सोचो। अगर बीटेक नहीं ले रहे हो, बीएससी ले रहे हो, तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। पहली बात तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग इन अ लॉट ऑफ स्ट्रीम्स। आप नेवी की टेक एंट्री छोड़ो, साल में 2 बार आती है। आर्मी की टेक एंट्री छोड़ो, 2 टेक एंट्री, सीएसएससी टेक तो साल में 4 बार आती है। आप कुछ एक ऐसी है जैसे एयरफोर्स की हो गई, आपको अगर सिर्फ एयरफोर्स जाने से मतलब है, तो यू कैन ऑलवेज चूज AEL। उसमें वैकेंसीज अच्छी खासी है, कोई बंदा लेता ही नहीं है, हर बार वैकेंसीज खाई जाती है उसकी, तो यू कैन चूज दैट। इट्स कॉल्ड बेसिकली स्मार्ट वर्क है ये।
तो बेसिकली आप कुछ भी नहीं तो आप साल में कम से कम भी नहीं तो 8 से 10 एग्जाम छोड़ रहे हो जो आप कर सकते हो। तो अब फर्स्ट चीज तो वो है। सेकेंड चीज वो है, सबको पता है कि इंजीनियर्स कितनी रिक्वायरमेंट है फील्ड में, तो एज अ बैकअप ऑप्शन भी इंजीनियर्स आर द फर्स्ट प्रेफरेंसेस। और विद स्किल सेट, बिकॉज बाय हार्श ट्रूथ हमको पता है इंजीनियर्स की स्किल सेट बहुत अच्छी है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वही होती है बैकअप में भी। तो इफ दे आर थिंकिंग कि भाई इंजीनियरिंग लेके वीड बी हैविंग अ मार ऑन आवर ये परफॉर्मेंस या फिर प्रिपरेशन, तो उनको खुद को पता है बीएससी लेने के बाद भी वो कुछ झंडे नहीं गाड़ने वाले। बीएससी लेने के बाद भी वो मटर गश्ती करेंगे, बी लेने के बाद भी मटर गश्ती करेंगे, अगर डीयू में अगर कहीं भी करो तो। इट्स नॉट भाई इट्स नॉट द उसका स्ट्रीम, इट्स उसका नॉट। सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं हूँ भाई, लिटरली। सी मैं तेरे को बताता हूँ, आई टुक अ ड्रॉप ईयर, ओके, एंड द मेन एम वाज कि पहले 2 एनडीए रिटर्न दिए नहीं हुए क्लियर, तो मैंने सोचा ठीक है यार ड्रॉप ईयर लेते हैं, ड्रॉप ईयर में करते हैं। भाई पूरे दिन मस्ती, लिटरली कुछ नहीं पढ़ाई की, जो पहले गलतियां थी ना उन्हें करेक्ट किया, और जो नोट्स थे वो बैठ के प्रॉपरली बनाए थे, मतलब लाइक 2 से 3 घंटे फिर एक रूटीन बन गई थी दिन में यार पढ़ना ही है, बिकॉज अब तो ड्रॉप ईयर भी लिया है, ठीक है, अब तो घर वाले वैसे ही निकाल देंगे फिर कि अबे तू अब ड्रॉप ईयर में भी तेरे से नहीं हो तो फिर तो तू किसी काम का नहीं है, राइट। तो अब वही वाली चीज़ है। फिर उसके बाद यार व्हेन आई वाज प्लानिंग टू गो फॉर बीटेक, तो मैंने सोचा जेई देते हैं, एंड जेई की भी ब्रो पहली इंटेंशन वाज कि टेक्निकल एंट्री स्कीम मिल जाएगी। ये है बात 2018 की। एंड उस टाइम पे जब मैंने जेई दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ, तो मेरे मार्क्स आए भाई 16, ठीक है, आउट ऑफ 360। और उस दिन मैंने खुद से एक प्रण लिया कि भाई मे बी इंजीनियरिंग डज नॉट डिजर्व मी। वैसे ऐसा कुछ नहीं था, ये तो खुद को दिलासे वाली चीज़ थी, बट भाई इतनी ज़्यादा तैयारी करके भी अगर 16 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 360 मार्क्स, देन आई डिसाइडेड कि भाई नहीं, इंजीनियरिंग तो नहीं हो पाएगी, बिकॉज है भाई चैलेंजिंग है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं, दे स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर सम लाइट कोर्सेज एंड बीएससी, बिकॉज साइंस बैकग्राउंड था तो सोचा बीएससी कर लेते हैं, एंड यार साथ में कुछ करने लायक हो तो हो। देन आई वेंट फॉर एनसीसी, सो दैट वाज लाइक माय इंटेंशन। एंड बाकी भाई कमिंग टू द मटर गश्ती, एज यू वर सेइंग, प्लीज यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद दैट। तो यस, पहली बात तो इंजीनियरिंग ले रहे हो तो इट्स राइट कि यू हैव टू कट डाउन अ फ्यू थिंग्स इन योर शेड्यूल। इंजीनियरिंग में तो बहुत डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्सेज अलोंग विद मैकेनिकल, तो वो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। उसके ऊपर प्रिपरेशंस करना वर वेरी चैलेंजिंग टास्क टू मी। मतलब मैं ये रीजन सीडीएस आज तक क्लियर ही नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का सीडीएस के लिए। मैं आज तक टिल डेट मैंने 5 सीडीएस दिए हैं, 4 आईएमए के लिए और 1 ओटीए के लिए, मैंने एक भी क्लियर नहीं किया। ब्रो अब हो ही नहीं पा रहा इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, अब देख बहुत ज़्यादा बच्चों का ये डाउट रहता है ना कि भैया हम तो एफकैट की तैयारी कर ही रहे हैं तो हम सीडीएस भी निकाल लेंगे, बट ये असली में नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है सीडीएस इज द पापा, ठीक है, एफकैट इज द बेटा, ठीक है। तो आप एफकैट की जितनी तैयारी करो दैट्स वन लाइनर एंड वेरी शॉर्ट, मतलब किसी इंसान को मुझे लगता है अगर स्टार्ट भी करना है ना स्क्रैच से अच्छे इंटरेस्ट के साथ, आई गेस 2 to 3 months आर डिसेंट, बट सीडीएस जैसी चीज़ है उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो मैन, इसमें तेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, एंड यू हैव क्लियर्ड एफकैट 4 times, सो व्हाट यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकैट एज वेल? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सही बोला है, सीडीएस के लिए बहुत है कि सीडीएस में इन डेप्थ में पूछता है, एफकेट में बस ऊपर ऊपर लेयर वेयर में पूछ लेता है और उनका हो जाता है। उनको खाली चेक करने की आता कितना है इनको, और एफकेट बहुत बहुत ही इजी लगा मेरे को। और सीडीएस बोलूँ तो सीडीएस में मेरा हमेशा जीएस में रहा है मार्क्स, आई गॉट 9.5, 11.34 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं मेरे को। अब मेरे को समझ है कि भाई मेरा सीडीएस में जीएस खराब है, अगर मैं जीएस निकाल दूं ना तो मैं सिर्फ इन 2 के बेस पे आईएमए कट ऑफ क्लियर कर सकता हूँ। True मेरे that. को मैथ्स में अभी जस्ट जो रिजल्ट आया था 52 मैथ्स में आया, 58 इंग्लिश में आया, मैंने क्लियर कर लिया आईएमए कट ऑफ। मैं जीएस मेरा सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो वो सीन है। अगर एफकैट की बात करें तो एफकैट इज वेरी इजी इफ यू फोकस जस्ट ऑन योर बेसिक्स, बहुत बहुत बेसिक। आपको सीरीज की तरह इंटू नहीं जाना एकदम अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो तो अब जितना प्रैक्टिस में जितना आप मॉक्स मारोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अलग अलग श्योर नहीं कि ये पैटर्न से आएगा, ब्लड रिलेशन से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतने आएंगे, बट जितना प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है। अभी जैसे कि सीडीएस में भी उन लोगों ने नया नया उंगली करना शुरू कर दिया, दे इंट्रोड्यूस्ड फ्रेंच पार्ट्स अभी सीडीएस वाले में, बिल्कुल। अभी एफकेट एफकेट वाला भी दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इनटू इट। तो एफकेट पेपर भी डिफिकल्ट गया था अभी रिसेंटली, तो दे आर आल्सो चेंजिंग देयर स्ट्रेटजीज अ बिट। तो आप जितना मॉक दोगे उतना अच्छा है पर्टिकुलरली। और इंग्लिश भी एफकेट की इतनी ज्यादा हम्बल नहीं है कि आप डिफिकल्ट, मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं है सीडीएस माफिक। तो 2 months की प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ, जस्ट मेकिंग नोट्स ऑफ एवरीथिंग, डूइंग मॉक टेस्ट, 2-3 मॉक टेस्ट भी अगर मार रहे हो महीने में, एक महीने में 2-3 मॉक टेस्ट, इट्स मोर देन इनफ। यू आर प्रिपेयर्ड टाइम मैनेजमेंट वाइज एटलीस्ट। एग्जैक्टली वो टाइम वाला, बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे मैंने देखा है उनको 15 से 20 क्वेश्चंस आते होंगे एफकैट के, ठीक है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते ना, इसी चक्कर में 50 से 60 मार्क का वो पेपर छोड़ देते हैं।
एंड वही फिर मुझे लगता है लास्ट में मेरिट में भी फर्क डाल देता है, राइट. एंड मैन CDS में आई गेस है ना वो GS वाला पार्ट वाज देयर वेयर यू वर लैकिंग द मोस्ट, बिकॉज अब हियर आई जस्ट वांट टू ब्रिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू. अब जैसे मैंने NDA निकाला हुआ था तो थोड़ा बहुत जो GS पार्ट था वो रेजोनेट करता था CDS प्रिपरेशन के साथ, राइट. अ बिट, आई वोंट से कि लाइक कंप्लीटली, मे बी 30 to 40% के आसपास. बट जब मैंने CDS IMA का दोनों बार रिटर्न निकाला था, आई अपेयर्ड फॉर CDS IMA 2 times, मैंने दोनों बार निकाला था, मेरा मेन फोकस GS ही था. बिकॉज मुझे पता था UPSC अगर कॉम्पिटिशन काटती है वो GS में ही काटती है. क्योंकि इंग्लिश में तो हम सबको लगता है ना कि भाई हम प्रिंस चार्ल्स हैं, है ना, चारों ऑप्शन है, चारों ठीक है, फिर अच्छा जय माता दी, हाँ सी टाइप्स. एंड लिटरली जब बच्चों से मैं पूछता था भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए तो दे वर लाइक कि हाँ भाई मोस्टली सभी कर लिए हमने इंग्लिश के. बट GS में वॉज द मेन गेम कि हाँ 35 किए हैं, 50 किए हैं. सो अगेन यार, टू ऑल द व्यूअर्स व्हाट आई वुड सजेस्ट दैट कि अगर आप GS की स्टडी कर रहे हो CDS के लिए स्पेसिफिकली, सो प्लीज़ डिटेल में स्टडी करो, नोट्स बनाओ, यूट्यूब से रेफरेंस लो, इन केस यू नीड क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी लगता है, बट स्टे कंसिस्टेंट. एंड न्यूज़पेपर रीडिंग, आई बिलीव आजकल भले ही GS में हिस्ट्री या जोग्राफी भी रिलेट करें ना, न्यूज़पेपर से बेस्ट सोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा. एंड न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो, आई गेस आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, करंट अफेयर्स, एंड वो इवेंचुअली आपको SSB में भी मदद कर देंगे, right. And Shankit bhai, now you know, coming back to this recommendations, right, so you got 2 times recommended for TGC and 1 time for SSC Tech. भाई बहुत ज़्यादा बच्चों का ये डाउट है कि भैया हमारी डायरेक्ट एंट्री की SSB आ रही है, बट हम नहीं चाह रहे कि हम डायरेक्ट एंट्री से पहला SSB दे क्योंकि रिकमेंडेशन रेट कम है, तो हम रिटर्न की तैयारी करेंगे. एंड इस केस में भाई लेट मी टेल यू, आई हैव पर्सनली नोन सम स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना पहला SSB मिस कर दिया, इवन दूसरा SSB भी जो डायरेक्ट एंट्री का आता है. तो भाई इस चीज़ में क्या करना चाहिए? क्या ये सच्ची बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि डायरेक्ट एंट्री से रिकमेंड होना, या फिर लाइक यू वुड एडवाइज देम जस्ट लाइक मी कि भाई एंट्री तो एंट्री है, जाओ अच्छे से प्रिपेयर होके एंड गेट द रिकमेंडेशन. ओके, ये काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. जैसे मेरा मेरा थोड़ा अलग थिंकिंग है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि आई हैव बीन देयर, मतलब मेरे फर्स्ट एंट्री वाज TS एंड आई वाज अ स्क्रीन आउट देयर. तो सबको मेरे को ये बोलते कि यार तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, यू हैड योर NDA अटेम्प्ट वेरी नेक्स्ट, लाइक मतलब हार्डली 1 महीना भी नहीं था मेरे NDA के SSB के लिए. तो तू TS का बाद में करता, NDA के लिए पहले जाता. नोन फैक्ट है कि लोग कम आते हैं, अगर दिमाग में चलता भी है यार, ऐसा ऑलरेडी है नहीं ये बात, पढ़ दो, बट लोग कम आते हैं, स्क्रीनिंग के बाद चांस ज्यादा रहती है, सीट ज्यादा है, तो थोड़ी सी लीनियंसी वी कैन एक्सपेक्ट वहां पे. बट TS में 90 लोग चाहिए उनको. अब 90 लोग में आते ही कितने हजारों में से हजारों लोग एग्जैक्टली, की वो होती है. 300-400 रिपोर्टिंग होती है. एंड ब्रो जस्ट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग, आजकल जो मैं रिपोर्टिंग सुन रहा हूँ लोगों से यार, वो भी पूरे 100+ तो जा रही है. एंड स्पेसिफिकली गर्ल्स के साथ आई पर्सनली बिलीव इट्स वेरी अनफेयर, क्योंकि लड़कियों के बैच ही बहुत ज़्यादा बन रहे हैं भाई. लाइक CDS का हो गया या NCC स्पेशल एंट्री हो गया, वो बहुत ज़्यादा उनका यू नो दैट बैच बन रहा है. एंड पहले ही बहुत ज़्यादा लड़कियां तो वो दिमाग में ओवर ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं कि भैया अब इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो स्क्रीनिंग कैसे होंगे, इतने दूर से जा रहे हैं, कोई जॉब से छुट्टी लेके जा रहा है, कोई झूठ बोल के जा रहा है, ठीक है, किसी ने खुद को डेंगू करा लिया है. भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके बच्चे जाते हैं, बट वहाँ पे दैट थिंग आई गेस इट यू नो इट रियली मैटर्स. एब्सोल्युटली. और फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा कुछ गोल्डन अटेम्प्ट है, दैट टू इफ इट्स रिटन अटेम्प्ट. मेरे हिसाब से रिटन एंट्री वाला फर्स्ट अटेम्प्ट इट्स गोल्डन अटेम्प्ट. वहां पे लीनियंसी इज एक्सपेक्टेड, बट थोड़ा लेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि रिटन एंट्री है वो. तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि यार अगर आ रही है आपकी एंट्री तो बेटर है कि गो फॉर रिटन एंट्री. बट ऐसा नहीं है कि यार आप छोड़ दो अटेम्प्ट. इफ द एग्जाम फॉर एग्जाम्पल, जिसकी मेरा एक दोस्त था वीरेंद्र मलिक करके, ही वेंट टू SSB, उसकी IMA की आने वाली थी, बट फिर भी उसने एक हार्डली 1 महीना गैप होगा. मैंने बोला कि भाई पहले तू IMA वाले में जा, तेरे लिए थोड़ा एक्चुअल एक्सपोजर सही रहेगा, तेरे लिए वहां जा. बट वो नहीं भैया ये आ रही है, मैं दे के आया था इसको, ऐसे ही बस टाइम पास करके आ जाऊंगा. वो गया, डॉक्यूमेंट आउट हो गया बंदा, कुछ प्रिपेयर नहीं किया था डॉक्यूमेंट भी उसने, तो डॉक्यूमेंट आउट हो गया. तो चलो ठीक है, उसका SSB काउंट तो नहीं होगी, बट अगर वो स्केल आउट होता तो मेरे इसमें स्केल आउट इज वन ऑफ द वर्स्ट सेक्शंस ऑफ पीपल, बिल्कुल जो मतलब एकदम वो जानवर टाइप होते हैं. तो मैं सबको बोलता हूँ कि भाई कुछ भी करो, स्केल आउट मत होना. तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में स्केल आउट हो गए तो यू विल बी हेल्ड आउट, मतलब अगले अटेम्प्ट्स में यू विल बी मतलब एग्जैक्टली यार, वो फिर दिमाग में ना एक बैरियर सा भी बन जाता है, राइट. एंड कोई बोलता है यार बिल्कुल. एंड शंकित भाई, सिंस यू हैव डन योर बीटेक, राइट, सो ऐसी कौन से आपने स्टेप्स लिए, इफ आई आस्क यू वेरी प्रिसाइजली, कि ये 4 से 5 चीजें आपने अपनी बीटेक के साथ साथ की जिसकी वजह से यू गॉट प्रिपेयर्ड फॉर योर SSB इंटरव्यू एज वेल. सो व्हाट वर दोस 5 थिंग्स दैट यू डिड? ओके, SSB एज अ होल बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
व्हेन आई लुक्ड इनटू पीआईक्यू, जब मैं ग्रेड के पहले था, उसमें लीडरशिप वाला कॉलम पूरा खाली था। तो आई वाज लाइक कि भाई मैं जिंदगी भर कुछ किया ही नहीं लीडरशिप वाला मैंने। कॉलेज जब पहुंचा मैं, तो मैंने क्लब ज्वाइन किया और सबसे मेन क्लब था फिटनेस क्लब, मैंने वो ज्वाइन किया। तो वहां मैंने लीडरशिप स्किल्स उठाई, मैंने कॉलेज का प्रोग्राम रैप बना, वो उठाया। कॉलेज का क्लास रैप बना, मैं टीम लीडर्स बनी, मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, इतनी सारी लीडरशिप एक्टिविटी ली। और टिल डेट इफ यू आस्क माय बडीज फ्रॉम माय कॉलेज, वो बोलते थे कि भाई तू कर कैसे रहा है। आई हैव गॉट 8.89 सीजीपीए इलेक्ट्रिकल में, आई हैव गॉट माय प्लेसमेंट डन, आई हैव गॉट ए एंड एस, जो लोग बेस्ट करते हैं वो हर सब्जेक्ट में मेरे को आया, अलॉन्ग विथ ऑल दी लीडरशिप एक्टिविटीज। मैं क्लास से गायब रहता बंदा, मैं 50% टाइम क्लास से गायब हूँ मैं। कोई इवेंट करा रहा हूँ, कोई मैनेज कर रहा हूँ, कुछ ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब करने के बाद भी having leadership skills basically generates a lot and lot of new instincts in you. You will be able to handle people efficiently. अब अगर आप पहले बंदों से बात नहीं कर पा रहे, SSBs, तो you will be now able to guide people. You will be now able to get gel up with them properly. So ये मेरे को बहुत सिखाया leadership skills। सेकंड चीज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि डिग्री में टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल था। अब ये कैसे किया मैंने, दिन भर में मतलब क्लासेस चल रही है, 2 3 4 चलती है क्लासेस मेरी, उसके बाद मैनेज कैसे करना है। तो खेल खोल के आओ, जिम करके आओ, उसके बाद 2 घंटा तो रहेगा एटलीस्ट, खाने से पहले 2 घंटे रहेगा तुम्हारे पास। वो 2 घंटे मैनेज कर तुम्हें क्या करना है। तो मैं करता था कि वैट करता था। मैं अपने दोस्त को, मेरे 3 रूममेट्स थे, उनको बोलता कि भाई तुम 10-10 वर्ड मेरे को भेजो व्हाट्सएप पे, कोई भी रैंडम वर्ड जो तुम्हें दिख रहा है, तो भेजते थे। मैं इमीडिएटली बैठ के वैट बना रहा हूँ उस पे। आई डोंट फोकस ऑन टाइम, टाइम जाए भाड़ में, बाद में देखा जाएगा टाइम का। आई विल रिड्यूस द वर्ड शॉर्ट, लाइक सेकंड शॉर्ट कर लूंगा बाद में। तो वैट बना रहा हूँ। ऐसा करते करते मैं 60 वैट करता, 30-30-30, 20-20-20 करता वैट करता था मैं। तो इट हेल्प्ड अ लॉट। फिर वैट करा, तो उसके बाद फिर एसआरटीज कर रहा हूँ। तो 2 घंटे के अंदर मैं शेड्यूल ऐसा बना था कि कुछ ना कुछ तो कर ही ले रहा हूँ साइड का पार्ट। देन लेक्चर के बारे में, तो मेरे दोस्त लोग ऑल दो सबको पता, सबके दोस्त इतने ज्यादा वो होते हैं, दे डोंट लिसन टू यू। अगर तुम लेक्चर बोल रहे हो तो बीच में उंगली करते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ तुम उंगली करो, ठीक है, ताकि मेरा फोकस बिल्ड हो। तो वो लेक्चर के बीच में मजाक करना शुरू कर देंगे। तो जीडी हम कुछ कर रहे हैं, मान लो अभी कुछ गवर्नमेंट स्कीम निकाली, हम जीडी करने बैठ गए, उसमें हम 10-15 बंदे बैठ के जीडी कर रहे हैं। ओके। तो दैट बेसिकली इंडल्ज न्यू थिंग्स इनटू मी कि भाई मैं मैनेज कैसे करता हूँ बंदों को। तो ये चीजें बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का, लीडरशिप स्किल्स, देन न्यू प्रोजेक्ट्स। तो जो भी एक्सपीरियंस आप लोग है कॉलेज के अंदर, आप उसको एफिशिएंटली किसी ना किसी स्टोरी में डाल सकते हो। मैंने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, कोई अगर मेरे को 4 बंदा खड़े हो दिख जाए पिक्चर में, तो आई कैन ऑब्वियसली मेक अ स्टोरी की वो डिस्कस कर रहे हैं क्या प्रोजेक्ट बनाना है और एग्जैक्टली। रिसर्च क्या करना है, वो डिस्कस कर रहे हैं उस पे। तो दिस कनेक्ट्स टू माय पीआईक्यू एज वेल। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट वो हो जाता है। तो ये चीजें काफी हेल्प की थ्रू आउट डिग्री। तो ग्रेट जितना मैन, ग्रेट। opportunities मिले, grab them। एंड बेसिकली आई गेस इट वाज द एक्सपोजर, है ना, कि लाइक कि भाई पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, एंड जो बाकी की चीज़ें हैं डोंट मिस आउट ऑन दोज एस्पेक्ट्स, क्योंकि वहीं पे आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं दे विल बी इम्प्रूव्ड। नाउ शंकित, आई ऑल्सो नो, है ना, आई ऑल्सो गॉट टू नो फ्रॉम यू ओनली दैट यू आर ऑल्सो वर्किंग इन कॉर्पोरेट. So man, just tell us more about that, working experience, and how did that entire experience, it shaped you into a better human, जिसकी वजह से आई गेस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिली होगी एसएसबी इंटरव्यू के लिए. Yeah, absolutely. तो बहुत चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वर्कड एज अ फाइनेंशियल मार्केट रिसर्च एनालिस्ट इन अ फर्म कॉल्ड फ्यूचर्स फर्स्ट। तो मेरा काम बेसिकली ट्रेड्स डील करना था। अब ट्रेड्स क्या होते हैं, जब लोगों को बेसिक बता दूं तो यू ट्रेड इन इक्विटीज मार्केट, यू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। हमारा काम था फ्यूचर्स मार्केट में। तो उसमें भी अलग अलग काम था। मेरा रिसर्च करना था क्रूड फील्ड में और देना था। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा। Indian market are open for 9 to 3, but US UK markets मेरे थे, which is open for 22 hours a day and 23 hours a day, US UK। मेरे को सांस नहीं मिलती थी, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ना कुछ हो रहा है, ट्रम्प एक शब्द बोलेगा मार्केट हिल गई। क्रूड मार्केट इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्केट ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल. तो टाइम नहीं मिलती थी बिल्कुल भी। आई एसएसबी, जस्ट कि टाइम ही नहीं मिल रही वहां पे। कितने मेरा एसएसबीज? दोस्त 3 एसएसबी, So you 3 missed. आर्मी की। Okay man, so you missed your SSBs just because like वो your workplace, वहाँ से जो टाइम का नहीं मिला फ्रेम तैयारी के लिए भी और जाने के लिए एक्चुअली भी. वेरी गुड एनवायरनमेंट, हाँ बहुत ही हाँ बढ़िया था। हम पार्टीज में पूरे पागल थी हमारी हाँ हाँ कंपनी, हाँ पार्टी जम के कर रही है, हाँ हाँ. क्योंकि बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल था। बट टाइमिंग्स डिड नॉट लेट मी गुड एसएसबी बैक देन। ओके तो ओके. वो काफी क्रूशियल था। बट देन उसके बाद ही मैं रिजाइन किया। हम्म. वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज इन डिफरेंट मार्केट, मलेशियन मार्केट, ही गॉट रिकमेंडेड, उसने किया, जॉब रखी। एज सून एज जेएल आया उसने जॉब छोड़ दिया। ही इज इन ओटीए राइट नाउ एज वेल। तो इट्स ऑल अबाउट कि मैसेज मेंटेन कर रहे हो, बट इट्स वेरी क्रूशियल। आपको वो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। वहां भी मैंने लीडरशिप स्किल्स उठाई थी, मैंने वहां पे टीम लीड्स की थी। आई वाज एज वेल वहां पे। तो कॉर्पोरेट बेसिकली नॉट ओनली नॉट ओनली
tells you more about your habitualness, कि मतलब आप कहीं भी habitual हो सकते हो, you can settle yourself into any habitat, क्योंकि बिल्कुल। corporate is very difficult, you just pull out from a college, you are हम्म, raw material, so you have to now settle up with professional attire, हम्म, professional etiquettes, तो वो काफी crucial है, तो वो corporate सिखा देता है आपको। ओके। एंड देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सिखाता है, पैसा बचाना, पैसा सेव करना, इन्वेस्ट करना, वहां पूरा आता है। एग्जैक्टली एंड मैन यहाँ पे एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में जो कि करेंटली अभी कॉर्पोरेट में वर्किंग है, उनका यार दिमाग जो है ना बहुत वो डाइसिस है कि यार साथ में लाइक जॉब भी कर रहे हैं और एसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं एंड एसएसबी को हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, हम ना तो रिटर्न की तैयारी कर पा रहे हैं एंड आसपास जब देख रहे हैं तो यार साथ का क्लासमेट था, कॉलेज मेट था, यार वो रिकमेंड हो रहा है, वो अकेडमी जा रहा है, तो ना बहुत ज़्यादा एक वो सोसाइटल प्रेशर भी वो एक मेरे हिसाब से बिल्डअप होने लग जाता है। तो भाई इस केस में लाइक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एंड व्हाट यू वुड सजेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे सोचते हैं कि सर जॉब छोड़ देता हूँ, जॉब छोड़ के कंप्लीटली एसएसबी की तैयारी करूंगा, पर जब वो एसएसबी की तैयारी शुरू करते हैं पूरे दिन में तो उनको लगता है कि भाई अब 1 घंटे साइक पढ़ ली, 1 घंटे करेक्ट, अब पूरे दिन बाकी मेरे पास जो बचा मैं क्या करूँ, है ना। सो मैन इस इंटायर प्रेशर से कैसे डील किया जाए एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट? या एब्सोल्युटली, तो ये मैं रेकमेंड भी काफी लोगों को किया है कि ये करने के लिए। मेरा जॉब प्रोफाइल वाज डिफरेंट, तो मैं तो रेकमेंड किसी लोगों को जॉब छोड़ना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं, इधर मैं जॉब छोड़ू या मैं ये 20 घंटा जॉब बैठे रहा ऑफिस में। बाकी लोग का जॉब जो इंडियन कल्चर से होता है तो मेजरली 9 to 5 मान लो, या मैक्स टू मैक्स 8 से 10 घंटे का जॉब होता है। तो आई नो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज, आई नो इट्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड सिनेरियोज वेयर यू कैन मैनेज इट, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप खुद इमेजिन करो, आपको दिन में 12 स्टोरी लिखनी है, एटलीस्ट यू कैन राइट 5-6 स्टोरीज, यू कैन थिंक अबाउट इट, तो 4 मिनट है, 10 मिनट ईच स्टोरी पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 स्टोरी आप 1 घंटा टैट को दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ यू हैव योर लंच टाइम में आप न्यूज़पेपर पढ़ो। हम वही करते थे, लंच टाइम जब मिलता था हम लोग को, हम पेपर पढ़ते थे, मैं और मेरा दोस्त होगा रिकमेंडेड, तो पढ़ते थे पेपर कि भाई क्या चल रहा है आजकल, देख लेते हैं। कुछ नहीं तो अब पेपर पेपर आ गया, पढ़ रहे, तो कोई भी वर्ड उठा लो पेपर में से, फॉर एग्जाम्पल पेपर में भी अगर यहाँ पे रूटीन लिखा है, तो रूटीन से आई कुड मेक 4-5 एड सेंटेंसेस वहां पे, मेरा बैड वहां प्रिपेयर हो गया। और अभी प्रिपेयर, तुम्हारा क्लाइंट मीटिंग चल रही है, क्लाइंट मीटिंग होगी, उसका तुम 10-15 मिनट खाली बैठे हो, ओके। कुछ भी नहीं हो रहा तो एसआरटी मार लो, एसआरटी के 10% मार लो। तुम्हें लिखना नहीं है एसआरटी, एटलीस्ट सोचो कि भाई अगर एक सांप सीलिंग से नीचे दिख रहा है, क्या करूंगा मैं। जनरली लोग या तो मारते हैं या तो उसको साइड करके कर देते हैं। तो ये चीजें हैं, सोचो खाली, वैट भी लिखने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट सोचो कि भाई ये वैट है, क्या रिस्पॉन्स हो सकता है इसका, मेरा रिस्पॉन्स क्या बना सकता हूँ इसमें मैं। तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है कॉर्पोरेट इस मामले में। एग्जैक्टली इफ यू एग्जैक्टली। आर adult enough, you will be able to at least get pull out 15-20 minutes from those fixed schedules, and वहां पे तुम साइक की प्रैक्टिस कर लो, लेक्चर ही कर लो, कुछ नहीं है तो लेक्चर का एटलीस्ट बॉडी बना लो कि मैं ये करूंगा। लिफ्ट से जा रहे हो नीचे तो लेक्चर बोल लो वहां पे, या खुद से बात करते करते लेक्चर बोल लो। तो और बाकी सैटरडे संडेज तो है ही, तो जितना हो सके प्रिपरेशन सैटरडे संडे में करता था मैं अपना, कि भाई एक पूरा मॉक मार लिया साइक का, एक पूरा मॉक कर ली मैंने जीपीई की। यस तो यस। सैटरडे संडे तो मेन है, बाकी इस सब टाइम में यू कैन यूटिलाइज योर थोड़ा साइक का पार्ट वहां पे। बिल्कुल। तो मैं अब सबको ये रिकमेंड करूंगा, हो सके वहां से टाइम पुल करो। एग्जैक्टली मैन, अब देखो द थिंग दैट यू नो आई एम लाइकिंग अबाउट योर रूटीन इज कि बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है। अब बहुत ज़्यादा बच्चे, मुझे लगता है पर्सनली, यू नो दे थिंक दैट कि भैया अब सैटरडे संडे है तो कपड़े धोने, ये करना है वो करना है, एंड ऐसे ऐसे स्टफ में ना फिर वो एक इनकन्सिस्टेंसी की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाती है, फिर रिपोर्टिंग आ जाती है। बट गाइज जेन्युइनली आई वुड लाइक टू यू नो एडवाइज यू ऑन दिस, जो कि स्पेसिफिकली अभी कॉर्पोरेट में या जो वर्किंग प्रोफेशनल एंड एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, भाई पूरे हफ्ते में 1 या 2 दिन जो भी फ्री मिल रहे हैं, मेक श्योर यू स्टे इन टच विद व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। अब जैसे संकेत इज सिंग दैट थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता था तो ही यूज टू रीड न्यूज़पेपर्स, प्लीज इंक्लूड दोज थिंग्स एज पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। एंड बहुत बच्चे तो संकेत आई हैव सीन मैन की दे हैव एंटर्ड कॉर्पोरेट एंड मे बी 1 या 2 साल के बाद उनकी जो फिटनेस है वो बहुत ड्रॉप हो गई है। मे बी वो कॉलेज में यार बहुत ज़्यादा फिटनेस के साथ रेगुलर में थे, बट 1 या 2 साल इनटू कॉर्पोरेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे ओनली टेल मी कि सर भले हम कॉर्पोरेट में 1-2 साल आ गए बट वी आर गेटिंग अ फीलिंग कि हमारी उम्र बढ़ गई है, हम 40 या 45 के लगते हैं खुद जब चेहरा देखते हैं। तो मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलता हूँ यार कि फिटनेस को भी इंक्लूड करो एज पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, एंड जस्ट लाइक यू आर हैविंग द क्लाइंट मीटिंग्स एंड एक वो सोशलाइजिंग वाली चीज़ वो भी करो, एंड गेट इन टू अ करेक्ट एनवायरमेंट, बिकॉज अगर वो चीज़ नहीं है सो यू वोंट बी फीलिंग द प्रोडक्टिविटी। बाकी तो यार देखो मोटिवेशन तो वो टेम्परेरी है, ठीक है, वो तो आपको कहीं पे भी मिल हाँ, जाएगी, राइट। सो अगेन दैट्स अ यू नो ग्रेट इनसाइट टू टॉक अबाउट द सेल्फ डिसिप्लिन वाला पार्ट। नाउ यू नो संकेत, आई जस्ट वांट टू नो कि जब जीटीओ के टास्क्स होते हैं, राइट,
जो आपके ग्राउंड टास्क होते हैं, जिसमें टोटल कैंडिडेट हैज़ टू गो थ्रू 9 डिफरेंट टास्क विद अ ग्रुप। अब उसमें जो प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट होता है और ग्रुप को पता होता है कि ये प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट है, तो बाकी का ग्रुप मोस्टली क्या करता है, आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, वो सारे टीम अप हो जाते हैं। मेजॉरिटी केसेस में आई हैव सीन, ठीक है, बहुत रेयरली होंगे कि यार वो आपके साथ सच्ची सपोर्टिव है, बट असली रंग हर कोई वो ग्राउंड में दिखा देता है। भले तुम सेकंड डे शाम को जितनी मर्जी प्लानिंग करो कि कल हम सारे भाई लोग ये करेंगे, तेरे को कमांड टास्क में मैं बुलाऊंगा, ये करेंगे वो करेंगे। सो एक प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट के लिए क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं इन बेसिकली द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या जो भी है? बिकॉज देखो, आपके ऊपर तो एक प्रेशर भी है, एक बर्डन भी है टू प्रूव योर वर्थ अगेन, बट सेम टाइम पे आपका ग्रुप मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको अलग कर देता है अपने से, राइट? एंड वो आपको बीच में कंटिन्यूसली जहाँ भी मौका मिले वो आपको टारगेट करता है। सो लाइक यू नो, हाउ डिड यू डील विद दैट प्रेशर एंड व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस व्हाइल परफॉर्मिंग इन जीटीओ टास्क्स? तो यहाँ दो चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा ग्रुप मिलना जो ये हरकतें करे, विच इज वेरी कॉमन। मेरे को रिकमेंड होने के बाद 4 एस भी दिए, मेरे को 2 बार ऐसे ग्रुप मिले और मैंने उनको फिर दिया भी है। तो वो कैसे हुआ? और दूसरी चीज एक और ये है कि ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अब रिकमेंड हो चुका है, आपको वर्थ प्रूफ करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी के शादी में आओ तो आपको कर देगा, वो मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं है। मैं रिकमेंडेड था 2 बार का, फिर भी मैं कोस्ट गार्ड में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ। ओके। मतलब तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट है, तो ग्रुप ऐसा करती है, ग्रुप इसलिए नहीं करती कि आप रिकमेंड हो गए क्यों आए हो यहाँ पे, वो इसलिए करती है कि ये उसको उनको लगता है ये रिकमेंड बंदा है, ये पक्का हमें टारगेट, वो ये पक्का हमें परेशान करेगा, ये पक्का ऐसी चीजें करेगा ग्रुप में जो इससे वो तो दिख जाए कि वो करेक्ट स्पीयर में हाँ है, हाँ हाँ। बट हम खराब यस, दिख जाए। उन्हें उन्हें ना पहले वो दिमाग में वो मुझे लगता है हाईजैक हो चुके होते हैं कि भाई ये तो प्रीवियसली रिकमेंडेड है, ये सब काम भी कर देगा, क्रेडिट भी ले जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। बट असलियत में देखो भाई, उस पर अपना प्रेशर है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन एक प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस ही देता है जितनी इज रिक्वायर्ड। देखो, ओवर परफॉर्म करेगा ना तो वो भी बाहर हो जाएगा, वो भी कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएगा, आई हैव सीन इट पर्सनली। बट वो जितना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है ना, ग्रुप उसको और टारगेट करती है कि अच्छा बेटा ऐसा कैसे है ना, तो किसी भी चीज़ में एग्री नहीं करते हैं, ट्राई करते हैं। बट असलियत में आई वुड एडवाइज इट टू ऑल द रिपीटर्स एंड इवन द फ्रेशर कि अगर ग्रुप में कभी भी पीआर है, भाई आप अपनी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, तुम्हारा इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है कॉमन ग्रुप गोल को अचीव करने में, राइट? सो यस मैन, यू जस्ट टेल अस कि यार कैसा था भाई वो ओवरऑल एक्सपीरियंस? हाँ, तो सिनेरियो ऐसा था ना, इसे बता दें सबको मैं फिर भी एक बार, अगर लोगों को लगता है कि पीआर गेट रिकमेंडेड, मैं अकेला बंदा रिकमेंड हुआ था 141 में, 6 पीआर आए थे, 6 के 6 कॉन्फ्रेंस आउट, भगवान ना करे के साथ हुआ, बट वो 6 के 6 सिया पीआर कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे। तो जरूरी नहीं कि आप, वो उनमें से 3 तो आर्मी वाले भी थे, तो आर्मी वाले कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे आर्मी के बोर्ड में, तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि हो आप। तो इट्स ऑल अबाउट उस पर्टिकुलर 5 दिन का प्रोसेस आप कैसे दिखा रहे हो। और नाउ कमिंग अबाउट द जीटीओ प्रोसेस जो था, जीटीओ में तो काफी क्रूशियल आपको प्रूव करना। जीटीओ में हर बंदे को जो आपका टीममेट है, आपको ये लगता है कि आप उसके ओपोनेंट हो, आप जो बोलोगे वो आपको काउंटर ही करेगा, भले आपका पॉइंट सेम क्यों ना हो। तो मैं करता ये था कि मैं अपना पॉइंट दे दिया और उनको कन्विंस करता अपना फैक्ट और फिगर्स डाल के। जैसे कि एक बंदा, आई स्टिल रिमेम्बर, एक बंदा था, एक बहुत ही ऑब्वियस पार्ट है जीपी में कि अगर एक सामने बंदा आपके लाई कर रहा है, अनकॉन्शियस ब्लीडिंग कर रहा है, प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग कर रहा है, लिखा है उसमें, और आधे घंटे बाद एक ट्रेन जा रही है और सेम वही फूटने वाला है उसका ट्रैक्स। तो बेसिक इंस्टिंक्ट वही होगा कि राइट नाउ तुम उसको फर्स्ट एड दो, बंदे जो गिरा हुआ है, और फिर टीम बना के 2 किलोमीटर दूर टेबल रह के यू गो देयर ट्रू दैट, आफ्टरवर्ड्स। ट्रू दैट। तो ये करना था। उसके बाद नहीं भाई, 300-400 लोग की जान दांव पे लगी है, हम वो करेंगे पहले। मैं बोला सी कंसिडर दिस पार्ट वेरी फर्स्ट, वहां दैट वुड बी हैपनिंग अ पार्ट इन द फ्यूचर। 30 मिनट है अपने पास, कुछ भी नहीं तो 2 किलोमीटर जाना है, वी हैव कस्टमाइज्ड व्हीकल, हार्डली हमें 2 मिनट लगेगा पहुंचने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कंसिडर दैट वेरी पार्ट। और जब मैं उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया तो ग्रुप में बाकी वाले बंदे भी इनटू इट आना शुरू हुए कि भाई हाँ, ये बंदा लॉजिकली सही बोल रहा है। तो धीरे धीरे करके वो बढ़ना शुरू हुआ। और मुझे लगता है जीटीओ से पहले जीटीओ हो जाता है। ये कैसे कि हम जैसे बिहेव करते हैं अपने बंदों के साथ, वो चीजें आगे लेके आता है। ट्रू क्योंकि दैट। एक पीआर मेरे ग्रुप में था जो सिर्फ सो रहा था, वो कोस्ट गार्ड रिकमेंड, सिर्फ सो रहा था कि इससे जलप नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ सो रहा है वो। तो सबको ये लगा कि यार ये तो जलप ही नहीं हो रहा, तो सब उसके अगेंस्ट गए थे। मतलब कोई उसको ना कमांडा से बुलाया, उसके आइडियाज ना किसी ने जियो मतलब पीजीटी में सुने ना एचजीटी में सुने, क्योंकि वो ग्रुप से मिल ही नहीं रहा है। सबको ट्रू समझिए दैट। यार ये बंदा कैसा, ये कैसे कट करी सर। उल्टा मैं कोई देख के बोलेगा नहीं मुझसे रिकमेंड हूँ, मैं हाँ ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। रात को हम लोग चप्पलें बजा रहे हैं एक दूसरे हाँ को, हाँ हाँ। रात में लाइट ऑन करके, जो अभी मूवी आई है वेब सीरीज सेना,
तो हाँ उन्होंने किया, हमने सेम चीज किया है, हाँ हाँ हाँ, हाथ में उसी बंदे को भगा के हमने बाहर भेज दिया। तो इंटरव्यू आ रहा है, सामने को बुला रहे हैं, हम्म, वो बाहर गया, कुछ नहीं है। हाँ हाँ सेम चीज से हरकत हमने की है। ओके पीपल डिड फील लाइक कि मैं पीआर हूँ, क्योंकि मैं ऐसे स्ट्रिक्टनेस, ऐसा डिसिप्लिन वाली चीज दिखाई नहीं रहा। बिल्कुल। तो वो मेन है। आई बिलीव जीटीओ टास्क इज 50%, आप जो कर रहे हो 50% है। आप ग्रुप के जेल कैसे हो रहा है ट्रू वो है। दैट, वो ओवरऑल ग्रुप को जो ग्रुप रिस्पेक्ट किस चीज है। बिहेवियर एंड वो मुझे लगता है वो पहले 2 दिन में जितने आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, चांसेस है, यू शुड गो एंड जेल अप। बिकॉज वो स्टार्टिंग से अगर आप अडेप्टेबल हो जाओगे ना उस फ्रीक्वेंसी पे जिस पे आपका ग्रुप वाले मेंबर्स है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से है, सो इवेंचुअली वो आपको आगे भी हेल्प करेंगे। बाकी संकेत भाई, व्हाट अबाउट द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, व्हेन यू वर वर्किंग विद द इंटायर ग्रुप ऑन द फील्ड, तो वहां पे क्या क्या चैलेंजेस थे बीइंग अ प्रीवियसली रिकमेंडेड गाय? हाँ, वहां पे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीजीटी में तो हम लोग को आइडियाज, टचवुड मेरा आइडिया जनरेशन बहुत ज्यादा क्विक है। तो अगर कुछ दिख रहा है मेरे को कि यार ये स्ट्रक्चर है, मैं फट से बोलता हूँ ये कर, और वो लोग सुनेंगे नहीं। ये ऑब्वियस बात है, चलो मैं पीआर हूँ ना हूँ फिर भी सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको वहां पे आइडिया आ रहा है। मैं बोला जेंटलमैन प्लीज, आई डू हैव एन आइडिया हियर, आई बिलीव इट्स अ वेरी प्रोबेबल आइडिया, इट विल वेरी वर्क। तो बहुत तो सुनते नहीं थे, बहुत सुनते थे। तो जो बंदे सुन रहे हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करने बैठ जा रहा हूँ कि भाई ऐसे से कर सकते हैं। देन दे बैक मी अप कि हाँ, जस्ट नंबर एक्स वाई जेड, दिस गाय, जस्ट नंबर ये इज सेइंग अ वैलिड आइडिया, वी कुड इंट्रोड्यूस दिस आइडिया इन दैट वेरी प्लेस। तो पीजीटी हो, एचजीटी, इसमें और जीपी में भी काफी हद तक ये प्रेशर पड़ ही रहा था। पीआर पे प्रेशर होता ही होता है कि आपको प्रूव करना है, आपको आइडियाज देने हैं। तो दो पार्ट है यहाँ पे, कभी कभार ग्रुप सुनती है, कभी कभार नहीं सुनती है। तो ग्रुप एक बार सुन ली, तो हर बार ऐसा हुआ है कि ग्रुप सुन लिया मेरा आइडिया तो वी मूव्ड अहेड। यस यस बट यस। अगर नहीं सुन रही है तो उनके अंदर का दिमाग है कि भाई मैं अपने आइडियाज ही करूंगा, फर्क नहीं पड़ता जीटीओ देख रहा है। अगर ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि भाई जी वो बंदा आगे चेंज ही नहीं कर रहा, जीटीओ बोला इफ यू हैव अ बेटर आइडिया यू कैन शिफ्ट प्लेसेस, स्वैप प्लेसेस। मैं बोला कस्टमर एबीसी यू कैन कम हियर, यू कैन स्वैप विद मी। So really, I have an idea, it will work. तो मैं बोला ओके, लेट्स गिव देम टाइम। यूजे बोला यू डोंट हैव टाइम राइट नाउ, शिफ्ट करो। तो उसने शिफ्ट किया, मैंने आइडिया दिया, आइडिया वर्क किया, हमें आगे चले गए। बाद में अपने ग्रुप में उसको बोला कि भाई ऐसा नहीं करना होता है, इफ यू शुड बी ऑलवेज विलिंग टू स्वैप प्लेसेस। ट्रू दैट। वो मेन है। अब आइडिया आ नहीं रहा तो अब ग्रुप को रोक तो ही सकते कि भाई मैं आगे खड़ा हूँ, मैं रख दूंगा ग्रुप को यहाँ पे। यू हैव टू मूव अहेड। तो आपको नहीं आ रहा, छोड़ दो अपने वहां पे ईगो, वहां पे छोड़ दो, लेट द अदर्स गाइस कम इन। Exactly. नहीं फर्क मतलब पड़ता पीआर we हो। have to be that flexible, right? And being a previously recommended candidate, Shankit, what's the scenario in the command task? क्योंकि वहाँ वहाँ पे तो देख भाई इंडिविजुअल लीडरशिप के लिए तुम टेस्ट हो रहे हो, एंड ऐसा सच्ची में लगेगा उस टाइम कि भाई ये जो सामने बॉम्ब है ना जिसको डिफ्यूज करना है 30 सेकंड में ये फोड़ देगा, है ना? जीटीओ जानबूझ के वो बोलेगा कि हाँ हाँ फटने वाला है, जल्दी करो जल्दी करो। सो मैन लाइक what kind of scenario was there and was there any incident जिसमें you went blank? क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे blank हो जाते हैं वहाँ पे। हाँ, ये ब्लैक तब होता है जब प्रैक्टिस नहीं है। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस कोई नहीं कर पाता, जीतो कैसे करना है प्रैक्टिस। तो मतलब जैसे कि बहुत सारे भी ऑनलाइन पड़े हुए फोटोज, वो देख के प्रैक्टिस करना ही मैं कर रहा था, कुछ ऐप से कर रहा था, तो उससे आइडिनेशन क्विक आ रहा था मेरा। नाउ कमिंग टू कमांड टास्क कैसे जा रहा था, तो टीजीसी 140 में रिकमेंड हुआ, तो उसमें भी डिफिकल्ट गया था काफी। अब पता क्या चलता है कमांड अच्छा जा रहा है खराब जा रहा है। बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग टास्क तो आपको दिख जाएगा कि अगर ये स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, जितने मूविंग स्ट्रक्चर्स है उतने ज्यादा कमांड डिफिकल्ट है आपका। तो बाय दी स्ट्रक्चर्स मूवनेस यू कैन बेसिकली टेल कि हाँ ये डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है कि नहीं। यू कैन टेल योर चॉइस ऑफ एनी रिकमेंडेशन एटलीस्ट इन जीटीओ। ऐसा हुआ था मेरे में, सब कुछ मूव कर रहा है। मेरे में पाइप मूव कर रही है, मेरे में एक वो क्या बोलते हैं चेन दे दिया, चेन के साथ एक व्हील है वो मूव कर रहा है, यहाँ भी व्हील मूव कर रही है, फैंस मूव कर रहे हैं, सब ओके। कुछ मूव कर रहा है मेरे में। मैं पागल हो गया, हाँ कुछ आइडिया जनरेट नहीं होता उस पॉइंट में मेरा। हाँ जीतो आया, बोला संकेत ये है, ये प्रीवियसली रिकमेंडेड, सो यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू, आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग। सामने टास्क देख रहा हूँ, तुम्हें करना है बस, ये 3 स्ट्रक्चर नीचे दिए हुए हैं। ओके। तो ये मेरा TC1 नहीं, मेरा टेक 65 का था। तो उन्होंने दिया, मैं ब्लैंक, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला कि यार आई कॉल सर, कस्टमर एक्शन वाई को बुला रहा है। ठीक है, एज सून एज दे कम द टाइम स्टार्ट्स। तब तक वो आए, मैं ब्लैंक हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं बोला गणपति बप्पा मोरिया, शुरू किया, एक ऑब्स्टिकल पे दिमाग लगाया, हो गया सॉल्व। उसका पूरा रो हो गया। और दिमाग करते 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 हो जाता है, बस आपको रुकना नहीं है। जितना ट्राई मतलब करते आइडियाज रहना है। मार सबको मारो, यस यस। ट्राई करते रहना, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही लगेगा। और जो भी स्ट्रक्चर वहां पे है, कोई भी, ये गेम नहीं है कि भाई तुम्हारा डेवलपर ने कुछ ऐसा बना दिया कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, नहीं। वहां पे जो स्ट्रक्चर है कोई ना कोई यूज का है ही वो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो ऐसे ही ऐसे डाला लगा हुआ है। दिया। अब बस उसमें लॉजिक लगाना है। अगर 2 ऐसे लगे हुए हैं तो लॉजिक सिंपल हो कि उसमें डाल सकते हो बल्ली, तुम पट्टा डाल सकते हो, बैक सपोर्ट कहा सकते हो, वो देखो तुम। तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लिक कर जाएगा।
बस ट्राई मारते हैं, मैं ट्राई मारता गया, फर्स्ट रो हो गया। हम्म, फिर उन्होंने बोला आप संकेत ना डू सेकंड रो कर दिया, थर्ड रो कर दिया। थर्ड रो में लास्ट वाले में 2 आईडीज लगवाए अंदर से। ओके ये 65 में हुआ। तो गुजरात हारी। 142 में तो भयंकर कर दिया। उसने मेरे को 8 फीट लंबा प्लैंक दिया जो हमसे पकड़ा नहीं जा रहा है। वो प्लैंक दिया और जमीन के अंदर हाँ बस 2 ऑब्स्टिकल थे ओके और बहुत दूर थे। तो एयरफोर्स में तो होता है डबल ब्रिजिंग करनी पड़ती है। यस यस तो यहाँ डबल ब्रिजिंग में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आर्मी में होती है डबल ब्रिजिंग। मैंने आज तक लाइफ में कभी देखा नहीं डबल ब्रिजिंग होते हुए आर्मी में। यहाँ था। मैं बोला यार अब तो करना पड़ेगा। तो मैं किया और मेरे को रस्सी नहीं दी है, मेरे को दिया स्टीयरिंग व्हील। अब स्टीयरिंग व्हील दिया है और मेरे को बॉम्ब नहीं दिया है, मेरे को भारी सा इतना बड़ा लॉक दिया हुआ है। ओके ये मैंने कभी देखा नहीं ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ हाँ तो लॉक दिया है। अब 3 बंदे हैं। जमीन पे जगह भी इनफ नहीं है कि मैं 3 बंदों को कहीं पे फिट कराऊँ जमीन में। तो ये इतना प्रेशर पड़ता है प्रीवियस रिकमेंडेड पे कि आपको समझ ही नहीं आता है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आपके गए पानी लेने के लिए, ट्रू कुछ दैट समझ नहीं आएगा। वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड वहां पे जितना हो सके बस मतलब एक्सपेरिमेंट यूज करते करो रहो ग्राउंड को। बस वही चीज वहां पे दिखती है। True that. And man, I have seen so many candidates taking assistance of their subordinates with respect to the ideas. तो भाई वो सही चीज़ है या गलत चीज़ है? बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम अपने सबॉर्डिनेट्स पे रिलाई कर रहे हो आइडियाज़ के लिए तो भाई तुम कमांडर किस बात के? मतलब दैट्स व्हाट आई फील। सो यू शुड नेवर सीक द आइडिया। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू में इस चीज़ पे क्या कहना है? एब्सोल्युटली एकदम सही बात है। वो कमांड टास्क है, एग्जीक्यूटिव तो है नहीं कि भाई हम सब मैं हेल्प ले रहे सबॉर्डिनेट्स का। ऐसा हुआ है वैसा आदमी हाँ कि भाई मैं एक बंदे के उसमें गया था। तो हाँ फ्रेशर था। तो मुझे फ्रेशर ग्रुप में डाला गया था, पता नहीं क्यों। तो डाला तो वो बंदा मेरे को बुला रहा है कि भाई आई डोंट हैव आइडिया राइट नाउ, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? बोला अपॉलजीज बट आई डोंट हैव आइडिया सर। तो तो उसने बोला फिर 2-3 बार उसने बोला पोक के आइडियाज दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो पूरा ही फ्रेशर था। तो रेकमेंड तो हुआ नहीं चलो, बट फिर भी तो वो वही है। इस कमांड टास्क का मतलब ही वही है, पूरा क्रक्स वही है कि आप एज अ लीडर अगर परफॉर्म नहीं कर पाए अभी तक तो नाउ यू शुड बी डूइंग समथिंग, नाउ यू शुड बी अप्लाइंग योर ब्रेन्स। तुम अपना रीजनिंग दिखाओ यहाँ पे। तो अगर आप सबॉर्डिनेट से हेल्प ले रहे हो तो भले उसको पॉइंट नहीं मिलने वाले, उसको ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलेगी। उसको इनफैक्ट यही होगा कि भाई वो क्यों हेल्प कर रहा है अपने इसका सीनियर का, मतलब जो भी लीडर है उसका। तो ट्रू दैट एज अ लीडर आप जब बन रहे हो, कमांड टास्क में कमांडर बन रहे हो, तो डोंट डेयर आस्क क्या सॉल्यूशंस फ्रॉम एनीवन। एनी अगर आप सबॉर्डिनेट ब्लैंक क्यों ना हो जाओ मत पूछो। ऑल्दो कभी कभार हम दोस्त होते हैं तो हम चुपके से बोलते हैं, यहाँ पट्टा मार हाँ हाँ जीटीओ देख लेते हैं। हाँ हम लोग को जीटीओ पूरा कहते हैं जीटीओ सर को सब पता होता है भाई। वो चश्मा फैशन के लिए थोड़ी लगाया, वो बेसिकली आंखें रोटेट करने के लगाई कि ये लोग मुझे ना देखे मैं कहाँ देख रहा हूँ। सो एग्जैक्टली वो यस पकड़ा गया। मैं बोल रहा था कि भाई हाँ हाँ हाँ। सुन रहा है, मैं यार सुना बहुत यार बच्चे ठीक है करते ठीक हैं है। ऐसा एंड पकड़े जाते हैं राइट। बट चलो यार अगर चटकी लगा ली तो लगा ली, है ना? ओके एंड संकेत मैन, व्हाट अबाउट योर बोर्ड कॉन्फ्रेंस एक्सपीरियंसेस? अब सिंस यू नो यू हैव मेड इट टू टीजीसी एंट्रीज 2 times, है ना? टीजीसी में यू हैव बीन रिकमेंडेड 2 बार एंड एसएससी टेक में यू वर ऑल इंडिया रैंक 2। सो भाई बोर्ड कॉन्फ्रेंस के कुछ एक्सपीरियंसेस बताओ। हाउ डिड यू टैकल इट एंड कोई ऐसे डाइसी क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड टू यू एंड हाउ डिड यू यू नो आंसर देम? सारे टचवुड में सारे जो बोर्ड कॉन्फ्रेंस गए सबके सब हार्डली 1 मिनट से ऊपर तो गए ही नहीं। सारे के सारे वर वेरी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एक आध में खाली मैं गिर गया था अभी रिसेंटली 142 में, आई गॉट इंजर्ड। तो मेरे को पूछा कि व्हाई वर यू इंजर्ड, क्या लगता है क्यों गलती तुमने की? मैं बोला सर आई कभी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने गलती की थी। मुझे बहुत जल्दी टार्जन स्विंग में रस्सी छोड़ दी जिसकी वजह से मेरे राइट लेग पे इम्पैक्ट पड़ा एंड आई हैड अ वेरी स्टेनियस इंजरी। तो बोला क्यों, तो क्या लगता है क्या तुम इम्प्रूव कर सकते हो? मैं बोला सर ये कर सकते हैं इम्प्रूव। तो एसएसबी में जो बोर्ड कॉन्फ्रेंस है अभी तो चेंज हो गया, प्रोसेस कंप्लीट चेंज हो गया भोपाल में कि ओनली दोज हु आर बॉर्डर लाइन केसेस या बॉर्डर लाइन केसेस खाली उन्हीं को बुलाते हैं। अदरवाइज जो कंफर्म केस है इन और आउट उनको नहीं बुलाते हैं। बट भोपाल इलाहाबाद में दे आर फॉलोइंग दिस। तो सिंपल इसका यही है बोर्ड कॉन्फ्रेंसेस में अगर आपको थोड़ा लंबा रखना है तो यू आर वेरी वेल श्योर कि भाई मैं बॉर्डर लाइन केस हूँ। तो मैं अगर लॉजिकली करेक्ट आंसर दूंगा, एटलीस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दूंगा तो मैं हो जाऊंगा। तो वैसा तो फिलहाल एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, बट आई स्टिल हैव नो एक्सपीरियंस। मेरे साथ वाले बैचमेट का हुआ था। तो ही वाज आस्क्ड क्वेश्चन मेजरली फॉर द करेज पार्ट कि भाई तुम्हारे घर में आग लग गया और तुम जो कैंडल लाइन में हो 20 के वहां पे आग लग गया, तुम क्या करोगे? ओके तो उसने बताया सर ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, मतलब उसने सोल्यूशन बताए। तो नहीं अब ये नहीं कर सकते, ऑर्डरली भी नहीं है। फायर एक्सटिंग्विश सारे खत्म हो चुके हैं क्योंकि एक एक्टिविटी हुई थी यस्टरडे, खत्म हो गए फायर सारे एक्सटिंग्विशर्स। क्या करोगे? अब ये करोगे अब ये करोगे। तो आई बिलीव उससे शायद करेज वाला पार्ट दिखाया नहीं होगा आईओ में, विजुअल ऑब्स्टिकल में। तो शायद करेज वाला पार्ट पूछा उसको, बहुत सारे पूछा उसने, कंटिन्यूअसली अपने बिलीफ में बैक करके आंसर्स दिए और वो रिकमेंड हुआ भी।
तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस उतना रहा नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस मेरे बैचमेट्स के थ्रू ही रहा है। तो बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस होता काफी क्रूशियल है, सारे एसेस हम्म। वहीं पे देखते हैं कि भाई ये बंदे कितना पानी में है। एग्जैक्टली एंड उस टाइम पे मुझे लगता है थोड़ा सा स्लो डाउन भी करके जाना चाहिए एंड यू शुड रिवाइज ऑल लाइक कि आप डे 1 से डे 5 तक अभी तक कैसे कैसे परफॉर्मेंस किया है, क्या क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या क्या बेटर भी हो सकती थी, राइट। एंड नाउ Shankit, I would be proceeding towards the conclusion of our conversation. First thing is आई जस्ट वॉन्ट टू नो, अब देखो यार जब हम SSB की तैयारी करते हैं राइट, हम बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स देते हैं, कभी स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, एंड कंटिन्यूसली वी सी आर फ्रेंड्स जो हमारे साथ के ही थे, है ना, कोई मैरिटन हो गया, कोई एकेडमी चले गया, कोई कमीशन हो गया, ठीक है, किसी की भाई शादी भी लग गई है एंड वी आर स्टिल इन दैट जर्नी कि हमारे SSB के अटेम्प्ट्स चल रहे हैं। तो भाई उस प्रेशर से कैसे डील किया जाए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन एंड आई यूजुअली से इट ओवर एंड ओवर अगेन दैट कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, है ना। तो वो वाली चीज़ तो है, बट हाउ कैन वन टैकल इट, बिकॉज देख तेरे से बेटर तो ये कोई नहीं जानता होगा, बिकॉज यू हैव बीन टू SSB मैन फॉर 17 times and during that entire journey you would have seen so many candidates getting commissioned, even married. So how did you tackle entirely that thing? एब्सोल्युटली यार, बहुत सही है। मैं ऐसा एग्जांपल दूं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, ही वाज विद मी इन माय जॉब एज वेल, तो वो ही गॉट रिकमेंडेड। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो रिकमेंड हो जाएगा, इनफैक्ट हमें से कोई हो जाएगा कि प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, टाइम ही नहीं मिल रही थी। ही गॉट रिकमेंडेड, OTI आ गया। बट मेरे को था कि यार ये मैं सारे प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कुछ सेम, हम लोग प्रिपरेशन टाइम सेम है, सब कुछ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यों मैं रिकमेंड नहीं हो रहा हूँ। ये बहुत ही कॉमन है, और ये किसी को ये ना लगे कि भाई अब अच्छा दोस्त नहीं हूँ इसलिए मेरे कोई फीलिंग आ रही है, ऐसा नहीं है। आदमी को कंपैरिजन हर बार होता है, आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना, कंपैरिजन रहेगा रहेगा। और वो कंपैरिजन आपका पूरा प्रेजेंट मोमेंट का सारा जो जॉय बोलूं या जितने मोटिवेशन है ना, वो ड्रिप आउट कर देगा पूरा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइड में अच्छा कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरे एक्शन अच्छे आ रहे हैं, बट मेरे को फिर याद आता है, मेरे को दोस्तों का आता है कि भाई क्या कर रहा है, अभी तो हम लोग लिबर्टी में जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तू आज हम मिलेंगे कभी ना कभी। फिर मेरे को सोचता हूँ कि यार मैं रिकमेंड क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों रिकमेंड नहीं हो रहा, ये रिकमेंड हो गया, मैं क्यों रिकमेंड नहीं हो रहा हूँ। तो वो पूरा मेरा जो मोटिवेशन खींच लेगा बाहर। तो ये बहुत ऑब्वियस चीज है, और मैं हर बंदे को यही बोलूंगा, ये बहुत दो चीज है कि बबल बनाना तो बॉल बना लो तुम अपना, कि भाई इस इतने टाइम तक मैं बाहर किसी से बात नहीं करूंगा, बॉल बना लो एटलीस्ट True that. प्रिपरेशन के टाइम के लिए। या तो बॉल बनाओ, या तो इफ यू आर सफिशिएंट इनफ, देन हार्बर दैट फीलिंग। कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर जाके थोड़ा बहुत एंजॉय करो। जैसे मेरे को अगर खराब लग रहा था, तो मैं पापा भी को बोल रहा हूँ कि काम को आज संडे को बाहर चलते हैं, तो संडे को चले गए खाना खाने कहीं पे, या चले गए कहीं पे ट्रैकिंग पे चला गया, मैं ट्रैकिंग पसंद है मेरे को, वहां चला गया। तो एक दिन तो एटलीस्ट खुद को फ्रेश होने दो। True that. तो वो चीजें वहां निकल जाएगी, वहां जाकर रोना है रो, क्योंकि मैंने कितने बार गया हूँ समिट के ऊपर बैठकर रोया हूँ कि यार मैं रिकमेंड क्यों नहीं हो रहा। मैं फैमिली बैकग्राउंड मेरा वही है, सब कुछ सेम है, मैं कर सकता हूँ, मैं एग्जाम्स क्लियर कर रहा हूँ, भगवान ये क्या कर रहा हूँ, मेरे को रिकमेंड क्यों नहीं करा रहे। तो बहुत रोया हूँ। लेट आउट योर फीलिंग्स, इट्स ओके, लेट आउट योर फीलिंग्स, इट्स फाइन। बट वेन यू आर बैक टू दैट जोन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग कंप्रहेसिवली कि भाई मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और प्रिपेयर कर रहे हो तो डोंट लेट दैट फीलिंग इन। एक बार में इतना फीलिंग्स ले लो कि भाई हो गया और मैं रो नहीं सकता हूँ। True एक बार that. मेरे को ऐसे ही आ गया था, भाई कितना रोऊंगा, और मैं थक गया रोते रोते, अब तो पर कर लो प्रिपेयर अभी। तो वो चीज बेसिकली पुश्ड मी कि भाई आई गेव टाइम टू माई सेल्फ टू हार्बर दैट फीलिंग, आई गेव माई सेल्फ टू रिलीव माई सेल्फ आउट, True कि भाई that. थक गया वो मैं, अब पढ़ाई करना है, अब प्रिपरेशन करनी है। तो वो मेन चीज है दैट पीपल कैन डू, कि भाई जस्ट टेक टाइम फॉर योरसेल्फ। हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन तो चीट दो अपने को, मत को प्रिपेयर, ठीक है संडे को कर लो भरे, या कोई भी चीज एक दिन मत को प्रिपेयर, बस लिव आउट योरसेल्फ, मजे करो, वापस आओ, यू विल बी मोर देन हैप्पी टू स्टार्ट प्रिपरेशन, कि भाई मैंने प्रिपरेशन की एक दिन तक, अभी करनी है फाड़ के एकदम। True that. तो True that. ये चीज हेल्प करती है। नहीं यार बिल्कुल ये चीज़ बहुत सही है एंड मेरे हिसाब से भी यार सब बच्चों को मैं भी यही एडवाइस करूँगा दैट यू शुड हैव दोज इमोशनल बाउंड्रीज कि देखो यार अब तुम्हारे साथ वाला भाई कोई भी रिकमेंड हो रहा है, इवेंचुअली ही और शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू द सेम अकेडमी जहाँ पे आपको जाना है, राइट। सो फील हैप्पी फॉर देम, बट उस चक्कर में भाई खुद की वर्थ कम मत करो, एज शंकेत सेड, ठीक है, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, है ना, बिकॉज मेरे हिसाब से तो यार वही सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करी है। एट लास्ट भाई तुम रिकमेंड भी हो रहे हो तो किसके लिए हो रहे हो, सबसे ज़्यादा तो हैप्पी तुम्हारे पेरेंट्स ही फील कर रहे हैं। उसके बाद इफ़ यू हैव सम हॉबीज इंटरेस्ट, टेक आउट टाइम फॉर देम, ट्रैकिंग है, कहीं पार्टिसिपेशन करना है, मैराथन के लिए जाना है, स्विच टू सम न्यू प्लेस, राइट। एंड व्हेन यू आर फ्रेश कम बैक, एंड मेरे हिसाब से यार ओनली द करेजियस वन हैव दैट एबिलिटी टू रीस्टार्ट एंड यू गाइज आर दैट, राइट। तो वही है यार, अभी शंकेत के खुद 17 अटेम्प्ट्स हैं, मेरे खुद 10 अटेम्प्ट्स हैं, है ना, तो आप एग्जाम्पल्स ले ही सकते हो कि लास्ट में रिजल्ट ज़रूर मिलता है, right? So just stay consistent. And Shankit, man, before we end the conversation on a good note, I just want
to get one final message from your end that you would like to give to all the aspirants who are preparing and going through this journey of SSBs, AFSBs, Coast Guard, and any of the interviews. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जितने एसएसबी दे रहे हो कभी भी लेथार्जिक होके मत जाना। बहुत लोग ये करते हैं कि यार चलो एसएसबी दे के आते हैं। एसएसबी हम लोग को मानती है बंदे एकदम फ्रेश होना चाहिए, प्रिपरेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, मतलब अनप्रिपेयर्ड जाओ रॉ फॉर्म में। वो सब बोलने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए कि रॉ फॉर्म में जाओ। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड भाई। ये तुम भले साइक बोलो, तुम भाई कुछ भी बोलो, प्रिपेयर होकर अगर नहीं जा रहे हो ना, टेक माई वर्ड्स, नहीं होगे रिकमेंड मत जाओ। ठीक है, प्रिपेयर होकर जाओ, एटलीस्ट बी रेडी कि भाई मैं ये चीज फेस करने वाला हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ कि मैं एनडी अटेम्प्ट में गया हूँ बिना प्रिपेयर होके। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि मैं ऐसा करके गया हूँ एनडी अटेम्प्ट में। तो व्हेन यू सी बैक, सी योर क्या बोलते हैं हिस्ट्री, कभी ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि आई वेस्टेड समथिंग, आई वेस्टेड माय टाइम। तो हमेशा प्रिपेयर होके जाना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गिव अप मत करना, क्योंकि अगर मैं गिव अप कर देता अभी तक तो मैं अभी पढ़ा होता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। ऑल्दो आई वाज वेरी रिनोड, वहां पे भी काम अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ होते मेरे, बट मैं वही पढ़ा होता, मेरे को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो कभी गिव अप मत करना, बस गेट दी प्रॉपर गाइडेंस। अगर गाइडेंस नहीं भी आ रही तो एटलीस्ट हैव हेल्प फ्रॉम योर पियर्स जो अकेडमी में है। मेरे अकेडमी में इतने बंदे, मेरे को सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हेल्प कर दे रहा है लिबर्टी में, तो एटलीस्ट गेट हेल्प फ्रॉम देम। वो भी नहीं हो रहा है तो कुछ भी पकड़ो काम, आप फोकस करो उस पर, साइक मारो, ये करो वो करो, कुछ भी करो बट फोकस करो। एटलीस्ट 2 घंटे करो, बाकी दिन में जितने करना है मजे करो, बट वो पर्टिकुलर जब पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो टाइम, फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को सबको बोलता हूँ जो प्रिपरेशन में हेल्प मांगता है वैसे, साइक बहुत क्रूशियल है। तो लोग इसको भाई अंडररेट कर रहे हैं कि भाई साइक क्या है, हम लोग खुद से लिख रहा है, जो माइंड में चल रहा है वही लिख रहा है। ऐसा नहीं है। आप जीटो में आप फुल आउट कर सकते हो उसको। इंटरव्यू इज जस्ट लाइक आपका एचआर, अगर आपने एचआर किया तो इंटरव्यू वही हो गया। आप फुल आउट कर सकते हो उसको, आप जीटो भी फुल आउट कर सकते हो, बट साइक इज समथिंग दैट यू पुश आउट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। True that. तो बिना प्रिपरेशन के साइक में आप पक्का रोजर अप करोगे। तो प्रिपरेशन करके जाओ, साइक इज लाइक 50% ऑफ एसएसबी। तो बिना प्रिपेयर के नहीं जा रहे हो तो मत जाओ, बेटर है। बीइंग वेरी हार्श राइट नाउ, प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसएसबी का। कोई अगर बोल रहा है बिना प्रिपेयर करे जाओ, नहीं, प्रिपेयर करके जाओ, जितना हो सके प्रिपेयर करो। नो द बेस्ट अबाउट योरसेल्फ, True क्योंकि that. एसएसबी इज ऑल अबाउट योरसेल्फ। इफ यू आर अवेयर अबाउट योरसेल्फ, यू विल बी एबल टू टेल दैट टू एसएसएफ, एंड ही इज जस्ट देयर टू फाइंड द सिंक बिटवीन ऑल द थ्री प्रोसेसेस। तो जितना हो सके नो अबाउट योरसेल्फ फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर पीयर्स, दैट्स ऑल। बस प्रिपेयर करके जाओ, कुछ भी ब्लंडर मत करना। बाकी बड़ा ब्लंडर तो नहीं करोगे तो यू विल गेट रिकमेंडेड। बस बी प्रिपेयर्ड। Great, man. Great. Thank you so much, यार Shanket. Man, it was really a very meaningful and insightful conversation. मुझे खुद बहुत ज़्यादा learnings मिली हैं from your experience so far. And same I believe कि जो audience है यार वो भी काफ़ी अच्छे से resonate कर पाएगी। बाकी all of us, we wish you all the luck, man, for your further endeavors. And we are really looking forward to see you in Olive Green soon. And and when you come back commissioned, definitely you will have a lot more stories to tell us. Right? So thank you so much, man. Have a great day ahead and see you soon.